good morning to all of you. Good morning, sir. I have one humble request to all of you. I am not a teacher here. I am one of you. And the topic which one is given to me is bit sensitive, sir, as per me. So it will be a both way discussion on the topic. Sir, if we were talking about the performance management, and as I just now come to know that this is the last session for your program. Sir, may I know why you joined this program? Anyone can please? Why you joined this program, sir? So there was pressure from director for a senior from administrative post to join this program. At least one faculty from this one. I agreed, and I was willing to hear this only, sir. सर महाभारत हुआ सर, और महाभारत कोविड पैंडेमिक ने बहुत पोजीशन खराब किया, बट वन थिंग वाज पॉजिटिव दैट वी वर एबल टू वॉच रामायण एंड महाभारत. और जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी सर, युद्ध स्टार्ट होने में कुछ ही पल बचे थे, तो युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर सर दूसरी सेना की तरफ जाते हैं, और दुर्योधन बड़ा खुश होता है सर कि शायद वी आर द विनर ना. तो वो कहता भी है नाउ दे हैव सरेंडर्ड एंड द गेम इज ओवर. तो भीष्म पितामह कहते हैं कि लर्न टू वेट, जस्ट वेट, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग. तो उसी में क्या होता है सर, जैसे वो आते हैं तो सबसे पहले वो भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं, वो उनके चरण स्पर्श करते हैं और वो उनको बोलते हैं विजय भाव. दुर्योधन ये बात उनको सुनता है, और तो दुर्योधन इस पे कोई कन्वर्सेशन नहीं करता. तो वो कहता है कि भीष्म पितामह, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया था, और कोई भी मैं काम शुरू किया आपके आशीर्वाद के बिना नहीं किया. तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि अच्छा किया कि आप आए, अगर आप नहीं आते तो मैं कुछ और देता. वो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो गुरु द्रोण जी के पास जाते हैं. तो वो गुरु द्रोण जी से कहते हैं, वो उनको बोलते हैं दीर्घायु भव. तो वो उनको एक बात बोलते हैं सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर, कि मेरे 4 शिष्यों को भी ये बात बोल देना कि अब हम रणभूमि में हैं, एंड इट इज अ टाइम टू परफॉर्म. यू हैव टू परफॉर्म, आई विल परफॉर्म. क्लियर? लेट्स सी हु विल विन, दैट इज अनदर इशू. But one thing I am expecting, that your performance should not be as per my less than my expectation. This should be far better than my expectation. So लड़ाई कर रहे हैं. So there are the two things when we joined the organization. I am working for my personal growth. Why I joined number of the conference, number of the seminars? Because these will be part of my CV, and I will be able to get my better API scores, and it may pay in future. This is the one aspect. But the next is why organization is going to permit me to go and join again and again. Why they have given me n number of the duty leaves? That is also one of the most important parameters. So now the UGC, the RUSA and other apex bodies, AICT, they are asking for the rating of the institutes. And if the rating of the institutes will start, there are again n number of the parameters. So every organization, what they are doing, I can call it as a part of the window dressing also. Yes. So they are working for the good statistics. That n number of the faculty have joined such number of the programs. One has presented paper in the UK, one has presented in US, 3 were in Chandigarh, like this. So as sir clearly very honest reply is given by sir, that sometimes we are doing it under pressure. So now sir, who is putting pressure upon us? The pressure is coming from the side of the management. And why the management is putting pressure upon us? Again, this is a big question. It's a need of time. One minute. So एक conference हुआ, एक initiative taken was by Punjab Technical University, sir. Dr. Rajneesh Arora was the vice chancellor at that time. So he has decided to run one course that was human values and professional ethics. And the principal were asked to nominate their faculty for the workshop, sir. That was 1 week workshop, sir, in-house. So he has nominated one gentleman, sir. And gentleman was under pressure. वो कहता सर मेरा तो करेक्टर भी ठीक था, मैं तो सबके साथ ठीक ठाक था, फिर डायरेक्टर साहब ने मेरे पे शक क्यों किया कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर मेरे को भेजा. उनके माइंड में n नंबर पॉइंट्स आए. And he was looking that when I will be able to get the time from the director and I will speak, sir, why you have the doubt upon me.
So when he has spoken to the director says, no, I have no doubt upon you. I feel you are one of the most capable persons. I feel that you will go and join this program, and then you can share that kind of the knowledge with the rest of the other faculty. So I was in position to recommend the other faculty also, but I recommended you intentionally, but your perception is different. So this is also happening, sir, most of the time. So sometimes we feel that I was lacking, director may be thinking like this, but it is not necessary, sir. Sir, when we were talking about this topic, so there were certain things, sir. When this topic was assigned to me, when I was thinking that how to discuss this topic with the senior members of faculty. So as we all know, sir, what we expect from the organization. All of we are working. Some of you may be working in the public sector. Some of you must be working in the private sector, sir. So what we expect from the organization, sir. So these are some of the points in front of you. We treat it fairly and consistently. We all are feeling that fear. In case of the public sector, sir, it is as per the norms. That segment is there, format is there. But in case of the private sector, again, n number of the parameters are there. These are decided. And we are also talking about the job career, enrichment opportunities, clear expectations we all have. I wish that I should be selected as principal. I need a score of 400. So I am working for that part. You may be working for that part. The new director recently has joined. Earlier, he was the faculty of this. So he was carrying some kind of the objective in their career. So according to that objective, he was working and he was able to reach to that point. And positive constructive feedback on regular basis. So every organization is going to conduct the feedback, sir. And when the feedback form is coming, we have sometimes the pressure. We don't know. Basically क्या होता है, sir? जितने बहुत अच्छे टीचर होते हैं ना, उनकी फीडबैक इतनी अच्छी नहीं आती, और जितने कोई लीनियट होते हैं तो उनकी फीडबैक अच्छी आती है, अगर हम बच्चों की बात करें. और बच्चे भी 3-4 तरह के होते हैं, सर. जो टॉप 20% वाले हैं, 80+ वाले, और जो 40 to 60 वाले होते हैं, दोनों का फीडबैक आप देखेंगे तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस के मिलेंगे आपको. तो परंतु हम इसको जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फीडबैक, और उस फीडबैक को सर should we take it negative or should we take it positive. But my topic is that why performance management. और मैनेजमेंट को सर सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स. So what the organization is willing, sir. So this is the NITTR, one of the prestigious government of India. We have the PAC in Chandigarh, sir. We have the NIPER in Chandigarh. We have the Punjab University in Chandigarh. Nearby we have the Thapar University, sir. But when we are talking about the top institutes, sir, top 10, top 100 at the international level, at the national level, तो तब हम अपने वाले का नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं. और जब हमारा वहां नंबर नहीं मिलता, सर, फिर हम ये सोचते हैं कि why we are unable to get this number, sir. For example, this time why our universities are not getting in top 100, because the most important parameter that is open the Scopus indexing and your journals in the top journals, sir. और बड़ी दुख की बात है, सर, कि हम हिंदुस्तान में हैं, एक जर्नल जो आपका IIT IIM चलाता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, सर. तो एक पेपर जो फॉरेन वाला था उसकी इंपॉर्टेंस थी. आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, बट यस, बिग गैप इज देयर इन द सिस्टम. तो जब हम ये एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, so we are expecting certain things from the organization. We all are getting salary. We wish that we should be in position to get regular salary till the age of 60 or 65 as applicable, and our amount of leave encashment, gratuity, provident fund, and all kind of the benefits should be provided as and when due. But तो सर ऐसे ही नहीं होता. Sometimes we are going to compare what is happening in nearby country, what is happening in the other organization, why we are not going to get the same things, and we are going to claim these things with the punishment. Normally these are happening. बहुत अच्छा टॉप इंस्टीट्यूट वर्ल्ड का किसी में भी जाएंगे ना, सर, जब हम उनसे भी बात करेंगे तो वो भी बोलेंगे यार आपको अच्छा लगता है, हमें मालूम है अंदर क्या है, क्योंकि उनको अलग तरह का चीज चाहिए, हमको अलग तरह का चीज चाहिए. बट इट मींस वी हैव द n number of the expectations. So sir, who can fulfill your expectations? Definitely the management can fulfill these expectations. सर मुझे नहीं मालूम आप में से कौन कौन है. अगर आप IIT IIM से हैं, सर, तो they are getting very good package, and just see the fee structure also, and see the fee structure of the school, colleges and other universities, IITs, polytechnic etc. quite nominal also. फाइनेंशियल बर्डन, बहुत सारी चीजें हैं, सर, जिनके ऊपर हम नॉर्मली नहीं बोलते. तो हाँ, इकोनॉमिक रिवार्ड्स है. तो बेसिकली दिस टॉपिक, जैसे टाइटल में मेंशन था, basically speaks about the two word of vision and mission. And these two terms of vision and missions are not from my point of view. These are from the point of view of institutes. Organization क्या उसका विजन मिशन लेके चलते हैं. तो मुझे लगता है कि आप भी से बहुत सभी को इस टर्म के बारे में अच्छी तरह से क्लियर है. But again, if you have any doubts, sir, these two slides are going to explain. So vision में कहते हैं it's
articulates the position that an organization would like to attain in the distant future, means near future we have to achieve this level, and it helps in creating a common identity and a shared sense of purpose. कई चीजें हैं सर, मार्केट में जाएंगे, आज भी रूरल एरिया में जाते हैं ना सर, तो वो बोलता है कोलगेट दे दो, फिर उसको कोलगेट देता है, कहता है ये नहीं वो जो लाल वाला होता है, मतलब एक ब्रांड बन गया कोई चीज। साबुन को अभी भी रूरल एरिया में सर 60% लोग लाइफ बॉय बोलते हैं, ठीक है, परंतु दूसरे वाले प्रोडक्ट भी इस तरह से चाहते हैं कि यस वी शुड गेट सच काइंड ऑफ द पोजीशन इन द मार्केट दैट वी आर रिकॉग्नाइज्ड। सम एग्जांपल्स आर हियर सर, ये कुछ कंपनीज के मैं आपको क्लियर करने के लिए बोला कि वो क्या, जैसे उसने बोला स्टोक्स आई क्लिनिक, आवर विजन इज टू टेक केयर ऑफ आवर विजन, मतलब आंखों वाले की बात कर, और इन्फोसिस इसके बारे में कहता है टू टेक ए ग्लोबली रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स बेस्ट ऑफ द ब्रिड बिजनेस सॉल्यूशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपने विजन रखा है, तो वो उसको अचीव करना है, बट इट इज नॉट अचीव टुडे, वी हैव टू अचीव इट। सर व्हेन वी आर कमिंग टू द मिशन, डिग्री डिफरेंस आ जाएगा सर। मिशन रेफर टू द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मिशन रेफर टू द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर वी वर रनिंग द यूनिवर्सिटीज, एन नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज वर देयर, फिर यूनिवर्सिटीज के बाद सर NISSR आ गए, दूसरे इंस्टीट्यूट आ गए, और फिर हमने सर नया कॉन्सेप्ट डाल दिया कि IITs IIM लेके आए सर। तो ये एक विजन पार्ट रहा होगा कि जो टॉप वाले हैं उनको कैसे रखना है, एक अलग तरह के कैलिबर को किस तरह से रखना है, उस तरह से रखा होगा सर। नाउ वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हैव गिवन द लिबर्टी टू द इंस्टीट्यूट्स दैट means over a period of 3 or 5 years we are asking for the no need for the affiliation from any kind of the universities, ठीक है सर। ऑटोनोमस बॉडीज इंपोर्टेंस दिया गया है सर, वो सारे बारे में बात करता है। तो जब वो सारे बात किया तो these things are decided by the government of India sir, and this vision and missions are decided by the respective institutes sir, ठीक है। मैंने भी सर पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम किया, और सेठ जी एक दिन बोलते हैं, देखो भाई बात ऐसा है कि मेरे को महामाई लक्ष्मी ने पैसा दिया था, I was in position to invest, I have invested the money. Now it is your institute. If you run it in the efficient manners, you will be getting better salaries. And if you are going to create the loss factors, then decide at your own. तो उस टाइम में तो हमें भी लगा सेठ जी फिलोसफी झाड़ रहे हैं, परंतु हाँ सर उन्होंने रियल में उसको इसी तरह से चलाया, और वो अब एक मेडिकल कॉलेज भी ले आए, परंतु उनका चलाने का स्टाइल वही है सर, वो अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉई हैं उनके पास, बहुत पुराने भी हैं और बहुत जल्दी जल्दी जाने वाले भी होते हैं। तो वो क्या है सर, हर आदमी का अपना विजन है सर, और जब मेरा विजन मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं खाएगा सर, तो आई कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। बुलाना है। यस। और फिर दूसरा क्या होगा सर, अब डेली डेली टीम बदलने से काम नहीं चलेगा सर, बट द मैनेजमेंट विल ट्राई टू डू इट, मैनेजमेंट विल ट्राई टू मैनेज इट, मैनेजमेंट विल ट्राई टू मैनेज इट। जैसे हमने शुरू में बात शुरू किया सर that I was interested to join any conference, workshop or presenting a paper and management has given me the leave. उसने इसलिए दिया कि नहीं देंगे तो भाग जाएगा, he is able to do something, he is productive, let's get the benefit of his caliber, तो उस पर्पस से उसने किया। तो सर जब ये दो टर्म्स हमारे पास आए, then question arise, why to perform? Now who have to perform sir? All of we have to perform। सीधी सी बात है सर, for getting good salary, ऐसे लगता होगा, और तो सर ऐसे नहीं होता। ऑल ऑफ वी knows it better that if my organization will grow then only I will grow। अब सर बड़ी बड़ी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज थे ना सर, वो भी लॉस में आ गए सर, और कभी सर नेगेटिव मत लेना सर, आई एम आल्सो सन ऑफ टीचर सर। गवर्नमेंट स्कूल थे पहले, प्राइवेट स्कूल्स आए, बहुत इक्का दुक्का प्राइवेट स्कूल था, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल वालों को अच्छी तरह से ग्रेड करते थे, तो उसमें हुआ क्या सर कि उन्होंने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया, अरे तो अच्छा बच्चा वहां के नहीं पढ़ लेता, करते करते क्या हुआ सर, जो टॉप अच्छे वाला बच्चा था वो सारे का सारा शिफ्ट प्राइवेट पे चला गया, और आज गवर्नमेंट वाला घर घर घूम रहा है प्राइवेट की तरह से कि बच्चा आ जाए। और मैंने अभी इसमें बाद में फिगर आएगा सर कि मोर देन 20,000 स्कूल्स आर क्लोज्ड, सच नंबर ऑफ द पॉलिटेक्निकल्स आर क्लोज्ड। तो सर वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से नहीं हुए सर, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का भी नेगेटिव रोल रहा होगा सर, ऐसा हुआ है सर, ऑन ग्राउंड हुआ है सर, रिसर्च इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली टू रीच द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन एंड goals, if we know that this is the vision of my organization, this is the mission of my organization, and if you are working or you are going to contribute in that field, definitely the management is happy, government is happy, or they will promote you। सर अभी हम कितना बड़ा पार्ट सैलरी का फंडिंग का
IITs IIM को देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, तो दे आर अगेन हैप्पी बिकॉज दे आर एबल टू ब्रिंग सर्टेन गुड रिजल्ट्स। कि इंटरनेशनल लेवल पर जब ग्लोबली बात करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ वहां पर निकल आता है सर, और बहुत सारे गवर्नमेंट वाले हैं जिनकी अच्छी फंडिंग भी होती है, डिस्पाइट ऑफ दैट अगेन दे आर नॉट एबल टू डू इट, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल or some kind of the other issues. Encourage and rewards behavior associated with organization mission and goals. Sir, I wish that all of we must write a paper, and you will write a paper, and we will write a paper, and we will mention the name of the institute. Along with the name of the institute, again, sir, as sir mentioned, even the university is asking that mention our name also, affiliated with so and so. वो क्यों कहता है सर कि जब वो ग्लोबली पेपर कहीं खुलेगा तो उनका भी रेटिंग ऑटोमेटिकली जब हम ग्लोबल पैरामीटर पे देखेंगे उसमें होगा सर। तो वो आप पेपर कब लिखेंगे सर? जब मैं आपको बोलता हूँ कि साहब अगर आपका पब्लिकेशन रिलेटेड एनी काइंड ऑफ द फीस देयर दैट विल बी compensated from our side. Okay, gentlemen, if you are going to write a paper, 8,000 will be given to you, 10,000 will be given to some kind of the rewards are there. और जब हम कोई कहते हैं सर in terms of the parameters which are good for the organization, okay, if you will do it, if you are going for the international conference, okay, 50,000 will be compensated, 1 lakh will be given from our side. तो मैनेजमेंट क्यों देगा सर हमको? मैनेजमेंट देगा सर बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू help for the achievement of their vision and missions. And if the organization is not in position to work towards the vision and missions, then believe me, public is going to notice each and everything. Each and everything is in the open domain. तो कर्व रिडक्ट नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं सर। अब गवर्नमेंट कहीं अलग अलग स्कीम्स लगाती है सर, हमारे पे पब्लिक प्राइवेट सब पे कंडीशन लगाती है यू हैव टू डू इट, एंड सम ऑफ द एक्टिविटीज आर गुड रियली जेन्युइन, but some of the activities just for the to please the governor, to make happy the administrator, to the politician, इस तरह का भी बहुत सारा काम होता है सर। Now the question is again why we should think for the performance management, sir. Now who is thinking for the performance management, sir? Now you must be thinking that performance management we are thinking only and only from the point of view of the institutes organization, क्योंकि उसको चाहिए नहीं सर, हमें भी चाहिए सर। अगर आपको कल को कोई स्कोरिंग की बात आती है तो हमें भी चाहिए। तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना सर, देखो जब भी मैनेजमेंट वर्ड लग जाता है ना सर तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है। एक वर्कशॉप था सर, आई वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एक जेंटलमैन 6 जेंटलमैन थे, तो उस पर बातें चली हुई थी। तो वो कहता है कि साहब इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट वालों का है, और वो खूब बोला सर 20 मिनट, गुस्से में आ गया। तो अब मैं कोऑर्डिनेटर था, मेरे को भी पसीना आ गया सर सर्दियों में। तो मैंने उनसे पूछा यार भाई साहब आप इसको कंक्लूड कर दो। क्या भाई साहब क्या बात करते हो आप? भाई साहब 10 रुपए का सिगरेट बेचने के लिए आप एक ऐड बनाते हैं, और ऐड क्या बनाते हैं भाई साहब, बच्चा मोटरसाइकिल पे आ रहा है सिगरेट पी के ऐसे करता डबल स्टोरी से कूद जाता है सर, और आपने इसको बना दिया सर, और यूथ उसको मोटिवेट हो गए, उसी स्टाइल में सिगरेट पीता है, और 4 की बाजू टूट गई, 2 की लातें टूट गई, टांगे टूट गई, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, आपको तो अपने प्रॉफिट से मतलब था। देखो उसका कंसर्न गलत नहीं था। सेम हमारा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी होता है सर। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो समटाइम्स वी आर थिंकिंग फॉर सेल्फ, बट वी आर नॉट थिंकिंग व्हाट विल बी द इम्पैक्ट अपॉन द अदर प्लेयर्स। नॉर्मली लाइफ में होता है। तो जब हम मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि a process that significantly affect organizational success by having managers and employees work together to set expectations. देखो साहब, when I was going for to avail the leave and going to present the conference, or even when number of the colleagues were not happy, sir, सर जब ये गवर्नमेंट ने API वाला फंडा सब पे एप्लीकेबल नहीं किया, और मान लो भाई साहब बहुत अच्छे रिसर्चर थे, भाई साहब जाते थे तो वो कहते थे यार भाई साहब का क्या है, तो डेली बैग उठा के चले जाते हैं। और तो जब सबको पता लगा भाई API बनाना पड़ेगा, पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस पे भी जाना पड़ेगा, फिर उन्होंने भाई साहब के साथ फ्रेंडशिप किया, भाई साहब कभी हमारा भी नाम डाला करो, इस तरह से चलो। तो होता क्या है सर, 2 पार्टीज आर देयर, वन इज द मैनेजमेंट एंड सेकंड वी आर। ठीक है, अब दोनों का अपना ऑब्जेक्टिव है सर। मैनेजमेंट हैव्स देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड वी इंडिविजुअल्स हैव आवर ओन ऑब्जेक्टिव्स, एंड इफ माय ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू परमिट मी, तो डेफिनेटली दे हैव सर्टेन इंटरेस्ट। और उनका इंटरेस्ट क्या होता है सर, whenever the word management is there, it means with the minimum efforts maximum output, with the minimum cost more benefit। ठीक है सर। तो यहाँ पर a process that significantly affect organizational success by having managers and employees work together to set expectations, review results and rewards performance। जो हमने अभी बोला था साहब that we can give 10,000, 8,000, we can give 1 lakh to the employees। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने इस बात को रियलाइज किया
that if we would like to retain the workers for the long periods, retention is one of the big issues. We have to retain our knowledge economy, we have to retain our human resources. और जब हम उसको रिटेंशन की बात करते हैं सर, अगेन फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स. यू हैव टू गिव देम इंक्रीमेंट्स. ठीक है सर. तो 3% इंक्रीमेंट तो है, ये सबको मालूम है. 2% 2 बार डीए भी बढ़ना है. तो पब्लिक सेक्टर में तो एक सेट में आपको मिल रहा है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. इवन इन नंबर ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इट इज नॉट हैपनिंग. तो सब उसमें कहता है कि देन देयर इज द नीड टू मैनेज इट. देयर इज द नीड टू मैनेज इट. नाउ आई हैव टू कन्विंस सर, if your salary is not going to increase 3 times, we are going to provide you the free transportation, free meal, free accommodation, education for the 2 kids free. But this is not applicable in case of the public sector. तो वहां पर क्या किया सर हमने, वो जो थोड़ा थोड़ा उसमें किया वो किया. मान लो मैं चंडीगढ़ में आ गया सर, और मेरा साथी किसी दूसरे शहर में है, तो वो इस बात पे खुश रहता है, अरे साहब 20,000 रुपया तो रेंट देते हैं, यहाँ पर 5,000 में काम चल जाता है. ठीक है ना. तो वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो दूसरे टाइप का मिरर यूज करती है. चंडीगढ़ वाला यहाँ पर आपको बात करते हैं कि यू आर गेटिंग बेटर एक्सपोजर, ओके, योर कॉस्ट ऑफ इंडेक्स इज हायर, बट यू विल बी एबल टू, योर किड्स विल बी एबल टू गेट द बेटर एजुकेशन, द एजुकेशन सिस्टम इज बेटर. सच काइंड ऑफ द मिरर्स आर देयर. सो मतलब ये कहते हैं वेयर बाय द एम्प्लॉइज वर्क बिहेवियर आर. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उनको आपने उसके नियर बाय लेके आना है, अलाइनमेंट करना है एक तरह से कि व्हाई द थिंग्स आर गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ सर अब माइंड तो नहीं करेंगे सर, आपने बोला कि प्रेशर था, यहाँ आ गया. डायरेक्टर साहब पे प्रेशर किसी और का था सर, किसी और पे किसी और का प्रेशर था. पर ओवरऑल प्रेशर क्या था सर कि गवर्नमेंट एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने जा रही है कि हर इंस्टीट्यूट की एक रेटिंग होगी, और रेटिंग होगी तो उसमें होगा. अगर वो रेटिंग के पैरामीटर पे हमारे 70% इंस्टीट्यूट ही नीचे गिर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर. और सर हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि 80% ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. दिस इज द फिगर से सर. Then who are accountable for this, sir? This is the big issue, sir. Sir, I was in a conference in the National Institute of Financial Management, Government of India, and most of the persons, participant resource persons were the bureaucrats, sir. IAS, IFS, like this. So then एक चंडीगढ़ दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर का इशू आया था सर उन दिनों कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फेक था. और वहां पर एक पेपर प्रेजेंट किया सर हम लोगों ने कि 15 लाख डॉक्टर्स इन इंडिया आर फेक. They are not holding the right kind of the qualification degree. Or such number of the persons got the PhD degree and the universities are de-affiliated. तो वो रिसोर्स पर्सन जो एक्सपर्ट बैठे थे वो कहते हैं, now just gentlemen professor tell me who is responsible for this kind of the thing. You teachers are accountable for these things. Who have given them passing marks? Who have given them internal assessment? Why you made them to get the minimum score? Why you were so liberal at that time? And who were the expert at the time of the Viva voice? And only you teachers were there. In that case, you can't blame the people that the bureaucrats were there, doctors were there. कुछ हद तक तो वो ठीक था. तो हमने उस टाइम पे जिस भी यूनिवर्सिटी ने वो डिग्री दिया सर, उसने क्या किया सर, उसने अपने हिसाब से मैनेज किया. हमने अपने हिसाब से मैनेज किया. हम भी कहते हैं साहब क्यों किसी से बिगाड़ा जाए, एक सेटिस्फैक्टरी वर्ड लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. 40% नंबर दे दिया, 90% तो नहीं दे, इस तरह का फिलोसफी चलाते हैं. बट इफ यू आर वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ द विजन एंड मिशन सर, such kind of the management is totally useless. If you are thinking like this, you will not be able to achieve anything. सर एक छोटा सा एग्जांपल आगे बढ़ेंगे. सर अभिमन्यु का वध हो गया सर, तो वध हुआ तो अर्जुन ने शाम को प्रतिज्ञा ली सर कि कल मैं उसका द्रुपद थे कौन थे कि अगर मैं उनका सूर्यास्त से पहले वध नहीं करूंगा ना तो मैं अग्नि समाधि लूंगा. कृष्ण साथ थे सर, कृष्ण कुछ नहीं बोले सर. अगले दिन युद्ध हुआ सर. अगली टीम ने भी क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी बनाया सर. सर ये टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए मैं एग्जांपल लेके आऊं. तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया कि अगर हम इसको एक को सेव कर लेते हैं तो 5 में से 1 तो गया, अगर इस समाधि हो जाएगी. तो उन्होंने उसके ऊपर टोटली डिफेंस लगा दिया. अब अर्जुन सुबह से शाम हो गई सर, सूर्यास्त होने को हो गया, अभी ऊपर देखे कभी उधर देखे. तो लास्ट में वो कृष्ण से पूछता है कि कृष्ण आप तो मेरे वो हो साथी, तो अब मैं क्या करूं. तो वो कहता है कि जब आपने ये प्रतिज्ञा ली थी तो मेरे से नहीं पूछा, मैं तो आपके साथ खड़ा था. क्या तो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे का बता. तो वो आगे का कहता है कि आगे का यही है कि टिल द टाइम यू आर कैरिंग 2 काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वेयर इज ही एंड वेयर इज सन, you will not be in position to do it. Just focus upon searching of the person.
and tell me where to go, you will be able to do it. तो उसमें क्या हुआ सर, जो ऑब्जेक्ट है वो मैटर करता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए सर, स्पेसिफिक होना चाहिए। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, if I am talking only and only for the vision and mission, it is not possible unless and until I will not fix my goal and objects. And if I will not work for the particular object, I will not be in position to reach at the level of the vision and mission. सर IIT दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, उनका वर्किंग स्टाइल अलग होता है सर, आप लोगों के इंस्टीट्यूट का अलग हो सकता है सर, मेरे कॉलेज का टोटली डिफर कर सकता है सर। तो हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग है तो बहुत डिफरेंस है, गलत है। सब में अलग अलग कैलिबर है, अलग अलग तरह के कोर्सेज है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेडिकल की अपनी रिक्वायरमेंट है, जनरल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो सर हमने बात किया काफी लंबा टाइम अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल, that we have to go for the performance appraisal, and unless and until I will not go to find out what is done by my workers, what my workers are doing, what kind of the caliber they are having, what kind of the increments they deserve, what kind of the rewards they deserve, तो तब तक भी कोई काम नहीं होने वाला। So when we were talking about the performance appraisal, it was very, very important that it should be communicated to all the concerned employees how you will be performed, how the performance will be measured. Clear sir? On which parameters we are going to measure your performance. जैसे आजकल हम बोलते हैं ना सर, satisfactory, good, very good, and at least 2 times you should have the good, और अदरवाइज आपको नेक्स्ट स्टेज नहीं मिलेगा। 2018 कुछ स्कीम में इस तरह का है। तो जब हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल का बात किया सर, तो अप्रेजल की बात किसकी की सर हमने यहाँ पर, ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑफ द एम्प्लॉइज। तो बेसिकली द परफॉर्मेंस अप्रेजल वाज रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज। परंतु सर अब इंस्टीट्यूट का भी परफॉर्मेंस अप्रेजल होना शुरू हो गया सर, clear sir, and the other bodies are doing this kind of the things. You must be finding many times that India today has conducted one survey and they mentioned so stages are there, means top 10 institute in engineering, top 10 institute in graduation, top 10 institute in medical, like this. तो वहां पर वो काम करते हैं। परंतु हमारा पार्ट था सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमारा टाइम क्या तो टाइटल क्या है सर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर कहते हैं an approach to creating a shared vision of the purpose and aims of the organization, helping each individual employees understand and recognize their part in contribution of to them. अब जब हम कोई जीत जाते हैं ना, तो हम किसको क्रेडिट देते हैं, टीम को क्रेडिट देते हैं, यस और नो सर। तो सर मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कंप्लेंट ही की थी, तो फिर उस टाइम पे मेरे को जरूर रियलाइज होगा यार अब आपको बधाई देने जाना तो कैसे जाएगा। But if we all are going to contribute, if we all are going to contribute, हर आदमी का contribution है। Sir is expert in electrical, sir is in electronics, computer, management, अलग अलग फील्ड में हम expert हैं सर। So every person is going to contribute, and हम contribute कौन, हमारे से contribution कौन लेगा सर? Management have to take our contribution, and how the management can take the contribution? There are again two things, by putting the pressure or by way of motivating us. By putting the pressure or by way of motivating us. तो कौन से वाला बेटर है सर? The motivational is better. और तो जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं सर, again two things are there, financial and non-financial, positive and negative. So it is being observed by the n number of the studies that every time financial motivation is not working, and every time the non-financial motivations are also not working. Every time the only and only the positive motivation is not working. Sometimes threat is also equally important. So at what time the thing should be given? And who will decide these things, sir? These kind of the things totally depends upon the leadership. What kind of the leadership you have? If you have a good leader, देखो sir, a leader in a political party, a leader in a social group, a leader in a friend circles, and a leader in a academic institutes, totally different. Academic institute में जब तक उस academic leadership का अपना vision और mission नहीं होगा सर, unless and until he is not carrying this kind of the things, he cannot work for the achievement of the vision and mission of the institute. सर मेरा फील्ड नहीं है ये। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर डायरेक्टर साहब आए, वो IIT से आए सर, और पहले वो यहीं के कहते फैकल्टी भी थे सर, और जिन्होंने भी उनको इलेक्ट किया होगा सर, डायरेक्टर रखा होगा, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आई होंगी सर। तो बहुत सारी एप्लीकेशन आई होंगी, तो जब सिलेक्शन का पैरामीटर आता है सर, तो उस टाइम पे कई चीजें देखी जाती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द एक्सपोजर यू आर कैरिंग। और सर जब हम ये सारी चीजें लगा के जाएंगे ना, तो उसमें हर फील्ड में जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लर्न करेंगे, और जब आप कुछ ना कुछ इसमें से लर्न करेंगे ना सर, डेफिनेटली वन डे यू विल कंट्रीब्यूट।
और कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सर? काइंड ऑफ द कल्चर. इफ यू आर प्रोवाइडिंग द स्कोप टू वर्क, इफ यू आर नॉट गिविंग द फ्री हैंड्स टू योर वर्कर्स, they are not able to come. Most of the times we are talking about the creativity and innovation. Be creative, be innovative, but we are not providing any kind of the facility to our workers. We are not giving any kind of the free hand to them. देखो साहब, there is no complaint against me in the organization because I am not going to contribute anything. I am just going in the class and coming from out of the class. I am not going to contribute in any of the other activity. As gentleman is working in n number of the committees and he is taking good stands, and most of the times he is taking good initiatives. He is organizing number of the events. तो क्या होगा सर? कुछ तो मिस्टेक्स होंगी, गलतियां भी होंगी, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है सर, ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर कल्चर. सर आप में से कितने लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हैं और कितने टेक्निकल से हैं? सारे टेक्निकल. अब आप एआईसीटी वाले में हैं सर, एक तरह से एआईसीटी वाला एप्लीकेशन. तो सर मैं उसी एग्जांपल पे आऊंगा सर. तो सर जब एआईसीटी एंगल से हम इसमें बात करते हैं तो हम एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं सर. और आपने देखा होगा एनुअल रिपोर्ट में भी इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं सर. परंतु वो पैरामीटर सर दिल्ली वालों के किस काम आते हैं सर? सर वो दिल्ली वालों के काम इतने नहीं आते. दिल्ली वालों के क्या है सर, इतना स्टूडेंट पढ़ता है कि उनको राइट काइंड ऑफ द फैकल्टीज देयर, द राइट काइंड ऑफ एक्सप्रेसर यू आर इन पोजीशन टू प्रोवाइड देम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स यू आर एबल टू प्रोवाइड देम, ठीक है ना सर? जब तक मेरे टीचर फैकल्टी को नहीं हो सर, उनका सिर्फ इतना ही प्रेशर है कि मैनेजमेंट इनके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहे. और जब ये सारे हम हर साल पूछेंगे तो दे विल नॉट डिसअलो एनी ऑफ द फैकल्टी. सिर्फ इतना प्रेशर होता है. और अगर कोई जेंटलमैन कंप्लेंट करता है कि सर आई अप्लाइड फॉर सो एंड सो बट नो परमिशन इज ग्रांटेड, उस टाइम में वो एक लेटर भेज देते हैं कि आई वी हैव रिसीव्ड सो एंड सो कंप्लेंट, जस्टिफाई इट, ठीक है सर? वो इस तरह से इसमें एक लेकर चलते होते हैं. तो सर जब हमने इसमें बोला ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बोला, तो ये दो चीजें है सर जो इनके बारे में हमने बात की, conceptual and practical levels. So if we will start speaking on the philosophy, we can speak for a number of the days, but unless and until we will not go on the concept, तो वो सब चीजें implement करने से बनेगी. सिर्फ philosophy से अगर if we speaks in terms of the plan, India is a good planner sir in the world. In terms of planning, we are best in the world sir. But as far as the execution part is concerned sir, we are the weak one in the world. हमारा implementation इतना अच्छा नहीं हुआ सर. If you see any of the 5-year plans starting from 52 to till day, हर प्लान का अपना विजन मिशन ऑब्जेक्ट था सर, बट अगेन वी वर नॉट इन पोजीशन टू डू सो. और सर एजुकेशन पॉलिसी नया कॉन्सेप्ट नहीं है सर, अभी आया. 30 साल पहले भी एजुकेशन पॉलिसी आया था सर, उससे पहले भी बहुत कुछ, और बीच में 30 साल में भी बहुत कुछ चेंज हुआ होगा सर. तो यहाँ पर कहता है कि सर कि जब ये आप बात करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है. वन इज द कॉन्सेप्ट एंड सेकंड द प्रैक्टिकल लेवल. वन इज द कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज द practical level. Sir, if you have gone through the new education policy clearly speaks about the two terms that give the theoretical part to the students starting from class 6, even 6th, 7th, 8th पे वो कहते हैं उनको practical काम भी दो. और unless and until you are not providing them practical exposure, so this kind of the knowledge is not working. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की किस पे बात किया सर? हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात किया सर. और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि देखो भाई इसके बारे में दो चीजें क्लियर कर लो कि कॉन्सेप्ट क्या है और प्रैक्टिकल क्या है. तो उसमें उसने बिजनेस प्लानिंग है. टू फंक्शंस आर क्लोजली एसोसिएटेड सर, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बीच में और भी आते हैं सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इंटरेक्टिंग, इस तरह से आता है. तो टू आर क्लोजली एसोसिएटेड में कहता है कि सर कंट्रोलिंग पे जाके आपको ये पता लगा व्हाट काइंड ऑफ द गैप वाज देयर, एंड इफ द गैप वाज देयर व्हाट काइंड ऑफ एक्शन यू हैव टेकन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. फिर सर अगर आपने एक्शन नहीं लिया और एक्शन ले भी लिया और आपने उन चीजों को जिनकी वजह से गैप आया अगली प्लान में इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगा. तो इसी तरह बेंच मार्किंग की बात करते हैं सर. बेंच मार्किंग की मैं मार्केट में किस चीज के लिए जाना चाहिए, मैं मार्केट में किस चीज के लिए स्टैंड करूंगा, वो होना चाहिए. कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर. अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया और वो भी बहुत कामयाब है सर. और एक बच्चा जो आईआईटी में पढ़ के आया था सर, वो बहुत अच्छा कामयाब हुआ सर. तो एक बच्चे ने जिसने पैक्स से किया था, निट्रस से किया था या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया था, उनके बच्चे भी कामयाब हुए सर. तो कामयाब तो सबके हुए सर, परसेंटेज का फर्क रहा सर. और जो परसेंटेज का फर्क रहा सर सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट मेरिट बेस की वजह से फर्क नहीं रहा सर. द बेसिक डिफरेंस वाज बिकॉज ऑफ द कल्चर. इफ यू आर कैरिंग दैट काइंड ऑफ द कल्चर सर, हमारे यहाँ की टीचिंग में और बाहर वालों की टीचिंग में डिफरेंस क्या है? Outside teaching is more research oriented sir. Higher education is totally research oriented sir.
हमारे यहाँ पर क्या था सर, हम सबने देखा था, हमने उसके ऊपर कम कॉन्सेंट्रेट किया। तो यहाँ पर कहता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगा, अनलेस अनटिल यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स, टू योर फैकल्टी, टू योर नॉन टीचिंग स्टाफ, यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। तो जो हमारा टॉपिक है ना, इट इज नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट वन, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। अगर मेरे डॉक्टर्स हैं, उनको डिफरेंट नई नई चीज़ों की टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग नहीं दूंगा, उनको अपडेट नहीं करूंगा, तो सर मेरा हॉस्पिटल नहीं चलेगा। और सर ये जो फोर्टिस वगैरह है, जितने बड़े बड़े टॉप हॉस्पिटल्स हैं ना, ऐसा नहीं कि सारे के सारे डिपार्टमेंट में बहुत टॉप के डॉक्टर्स होते हैं सर, बट सम डिपार्टमेंट्स दे हैव द परफेक्चर्स, और उसी के उसमें वो टैग बन के सर वो हिट हो जाते हैं मार्केट, उसी टैग पे वो क्या हो जाते हैं सर, हिट हो जाते हैं। ठीक है ना जी। जैसे हमारा 40 वाले 40 वाला है, हमारे कार्डियो के बड़े नाउन डॉक्टर थे, और एक किडनी के थे जो सुषमा स्वराज जी के लिए भी गए थे, तो एक टैग बन गया। तो वो बने इसीलिए होंगे कि सर दे मस्ट गोट द राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एट द राइट टाइम सर। और परफॉर्मेंस रिलेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अभी हमने बात किया सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज देयर, सो ऑन विच इंडिकेटर्स यू विल बी परफॉर्म, योर परफॉर्मेंस विल बी टेकन केयर। तो वो इंडिकेटर जो हो सर वो अच्छे होने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट काइंड ऑफ द इंडिकेटर्स वी आर टेकिंग सर, कि वो रेगुलर था, उसका काम ठीक था, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, इस तरह के थे। और अगर हम उसमें दूसरे तरह के इंडिकेटर्स रखें कि आपने कितने इनोवेटिव आइडिया दिए, कितना अच्छा पेपर लिखा, कितना आपका साइटेशन हुआ, इस तरह से रखेंगे तो अलग तरह का चीज आएगा। तो वो इंडिकेटर्स अच्छे अच्छे रखेंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बन पाएगा सर। बट हु हैव टू डू दिस जॉब सर, this will be taken care only and only by the management have to take care and assessment and development centers होने चाहिए। आपको अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे ही रिसर्च सेंटर नहीं बनाएंगे, डेवलपमेंट सेंटर्स नहीं बनाएंगे, तो ये सर हम लोग ट्रेनिंग लेने आए सर, अगर मैं ट्रेनिंग लेने यहाँ आया तभी बेटर गेन होगा, और आई कैन अरेंज सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन माय इंस्टीट्यूट, तब गेन होगा। तो वहां भी हो सकता है सर, तो होगा कब, इफ वी आर एबल टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड्स। और परफॉर्मेंस अप्रेजल कहता है कि सर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना, अनबाइस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, अनबाइस्ड होना चाहिए। अगर आप बाइस्ड हो गए फिर वो सारे का सारा मैनेजमेंट जीरो हो जाएगा, और इसके बारे में काम करेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं हो। एक कवि सम्मेलन था सर, कवि सम्मेलन समझते हैं सर, तो कवि साहब आए, उन्होंने रचना पढ़ी सर, और सबने कहा जी वाह 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 क्या बात है जी। तो उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, एसी चला हुआ है, कुर्सी मिली हुई, तो दूसरी रचना पढ़ी सर। फिर लोगों ने वाह वाह की, तो तीसरी चौथी जब पढ़ने लगा ना सर, तो आसपास 4-5 पहलवान ऐसे लाठी हॉकी लेके घूम रहे थे। उसने कहा यार पढ़ी तो ठीक ठाक थी, तो भाई साहब मेरे से कोई गलती होगी? बोला नहीं नहीं साहब आप अपना काम करो, हम तो उसे ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आया था। और बाद में ऐसा ना हो तो आप बस साहब को बोले साहब लास्ट सेशन था और आपने डॉक्टर साहब को बुला लिया, और नींद आ गई लंच से पहले ही, और दिन तो लंच के बाद आती थी। तो जब ये हमने इसकी प्रोसेस की बात की सर, तो बहुत सारे एन कंपोनेंट हो सकते हैं सर, तो 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। डिफाइनिंग परफॉर्मेंस, डिफाइनिंग परफॉर्मेंस जो हमने बोला ना, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है ना। किस कौन से आउटपुट की बात करें सर, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन माय इंस्टीट्यूट्स, ये भी पैरामीटर हो सकता है सर। आई एम एबल टू रिटेन माय फैकल्टी, वो भी एक पैरामीटर होता है सर। आई एम एबल टू गेट द बेटर ग्रेड, ये भी हो सकता है। माय स्टूडेंट्स गेट द टॉप पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी, वो भी एक पैरामीटर होता है सर। तो सबसे पहले डिफाइनिंग परफॉर्मेंस, आप कौन सी परफॉर्मेंस की बात करें, एंड व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द अचीवमेंट ऑफ योर विजन एंड मिशन, दैट मैटर्स मोर सर। क्लियर। एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस, भाई सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने बोला तो था कि वी विल डू इट, you have to send these annual reports, and if the things are not going in the right direction we will take action, we will not permit you next time। और सबको परमिशन मिल रहा है सर, उसका जो भी बॉडी है सर, उसका सो जो विजन मिशन है सर वो एकदम जीरो हो जाएगा सर। अभी हमने बात किया कि बहुत सारे पॉलिटेक्निक, बहुत सारे इंजीनियरिंग, बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए सर। इवन मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉब्लम है सर, इवन इन मेडिकल कॉलेजेस वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो हुआ क्या सर, उनका जो परफॉर्मेंस की जिसकी बात की थी ना, उसके बारे पे उन्होंने काम ही नहीं किया। और अगर काम नहीं करेंगे, यू कैन स्टैंड इन द मार्केट फॉर शॉर्टर पीरियड, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर, तो एक स्टेज के बाद आप उसको भूलना शुरू हो जाएंगे सर। एंड फीडबैक एंड कोचिंग सर, टेक फीडबैक, continuous feedback is always good, criticism is always good, and the coaching is should be there. If there is any kind of the gap, compensate that kind of the gap sir. And if you will be in position to compensate that kind of the gap,
then only you will be in position to stand in the market. देखो हम बोलते हैं ना सर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर साहब आते हैं, भाई साहब आप काम अच्छा कर रहे हैं, नहीं आपका काम ठीक नहीं है, मैं 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये उसका ड्यूटी नहीं है सर. हिज ड्यूटी इज आल्सो टू मोटिवेट यू, टू टीच यू, to fulfill the gap. And if we are not going to fulfill that kind of the gap, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा सर. तो ये 3 चीजें हैं सर जिनकी आपने यहाँ पर बात करनी है. तो सर नेशनल में जो हमने स्टोरी अभी तक किया, उसमें सीधी सी बात एक हुआ सर कि 2 टर्म्स थी सर, विजन एंड मिशन. वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हुआ, वो उसने लॉन्ग टर्म है, आज का नहीं है सर, दैट इज लॉन्ग टर्म, दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म. सर जितने बड़े टॉप इंस्टीट्यूट अगर हम वहाँ पर स्टडी देखें, इनिशियली हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, 5, 6, 10, 20, not more than 100. But today the students may be 20,000, maybe 50,000 like this. वो पहुंचे, पर वो कौन से पहुंचे सर? Who were continuously working for the performance management. Who were continuously working for the performance management. सर हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है सर, PGI, आप सबने सुना होगा सर. सब भाई साहब हैं और दूसरे भाई साहब साथ में हैं, तो उनका बेबी का तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं, मिसेज बोलती है, अरे ये भाई साहब ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, इन्हीं से पूछो मेडिसिन क्या है. तो भाई साहब कहते हैं तुम ही पूछ लो, क्योंकि भाई साहब को तो पता आउटपुट क्या आएगा. तो फिर उन्होंने इनसे पूछा, भाई साहब कहते हैं बुखार है, हाँ, तो आप उनको अभी तो देखो क्रोसिन वगैरह दे दो, और बाकी ऐसा करना कल सुबह मेरी ओपीडी में भेज देना. सिर्फ इतना ही प्रिविलेज है सर कि मैं उसको नंबर 1 पे देख लूंगा, परंतु बिना पर्ची के, PGI की पर्ची के वो दवाई नहीं लिखता सर. तो इनिशियली स्टेज पे हमको बुरा लगता होगा सर, परंतु अगर हम एक इंस्टीट्यूट के क्वालिटी की बात करें सर, भाई दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर एबल टू गेट द पोजीशन इन द टॉप इंस्टीट्यूट इन द इंडिया, मतलब टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. सर वो इन्हीं कैरेक्टर पे अगर वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी करते, तो कल को वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते, और जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते तो फिर उनका जो कंसंट्रेशन, फोकस जो अभी सिस्टम पे है वो हिल जाता है. और जब ये बनाया होगा कल्चर सर, शुरू में इनिशियली बुरा लगा होगा सर, परंतु इफ यू फील एंड यू स्पीक टू द डॉक्टर्स व्हाई यू आर जस्ट वर्किंग फॉर द 2 lakh 3 lakh सैलरी, इफ यू विल बी वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर यू मे बी गेटिंग द 2 crore rupees पर मंथ आल्सो. तो वो कहता नहीं यार, आई एम हाईली सेटिस्फाइड. कि वो जो किसी शहर में जाते हैं ना, 50 वहाँ के टॉप डॉक्टर मेरे स्टूडेंट आते हैं, और बड़ा बड़ा गवर्नर भी मेरी वेट करता है, तो वो एक अलग तरह का फीलिंग होता है. तो यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बात किया सर. Initially being the workers, being the part of that team, it may not be good for you, but when you will be talking about the long terms, definitely it is good for you. तो ये क्या है, setting and defining goals to fulfill company's objective. तो मिशन की जो हमने बात किया था सर, ऑब्जेक्ट से हमने एक एग्जांपल से बात किया था, तो ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर एंड इट शुड बी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीवेबल सर. ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मैं बोलूँ भाई साहब आप तो 16 घंटे पढ़ाएंगे इस बार, आपका 16 का वर्कलोड है वीक का, तो हम इसको 26 कर देते हैं, एंड आई नो दैट यू कैन डू इट. तो वो बेचारा कर तो लेगा फॉर 1 semester और अ ईयर, तो 1 साल के बाद उनका परफॉर्मेंस जो लेवल, जो टीचिंग क्वालिटी थी सर, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा. एट द मोमेंट यू स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग विद दैट काइंड ऑफ द क्वालिटी, तो परफॉर्मेंस तो भाग जाएगा. ठीक है सर. परफॉर्मेंस एंड सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज. देखो साहब, टॉप मैनेजमेंट इज देयर. Most of the times what we say, normally say the top management, they are the owners sir, they are the decision makers. And second क्या है सर, हम वर्कर है सर, मैं उनको टॉप को बोल देता हूँ, they are the managers and we are the workers. And what is important, that kind of the correlation as well as coordination should be between both. Means this kind of the class should try to understand their expectations, and they should try to understand the we people expectations. And if they are able to manage these things sir, then it is performance management. And if they are unable, they fail to do it, then it is not a performance management. Or sir, if you would like to stand in the market for a long period, देखो, for a year, 6 months, 2 months, 3, 4, 5, anyone can survive. But if you would like to stand in the market, you have to perform in the market. And to perform in the market, sir, again you have to be bit strict. And bit strict means, और bit strict कैसे होंगे सर आप? You have to frame certain rules. और rules क्या होते हैं सर? Each and every person have to obey it. Either these are the matter of the managers or this is a matter of a worker. तो तभी वो होगा सर, otherwise नहीं होगा. जो हमारा ये मृत्यु उद्योग लिमिटेड है सर, इसमें जो इनिशियली जो वर्कर हैं,
वो सभी के सभी एक जगह असेंबल होते हैं। और सर उससे भी अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को लंच टाइम फिक्स किया हुआ है। एंड इनकम टैक्स कहते हैं you can provide the refreshment to the workers during the working hours, but you cannot provide the lunch more than 50 rupees. Up to 50 rupees lunch can be provided. पर तो बड़े बड़े जो कारपोरेट है सर, उनमें लंच उनको फ्री दिया गया है। सर क्या आप बता सकते हो कि लंच फ्री क्यों दिया सर? हमने लंच दिया, फ्री दिया सर। हमने आपको लैपटॉप भी दिया सर, मोबाइल भी दिया सर, ट्रांसपोर्टेशन भी दिया सर। क्यों दिया सर? बड़ी तो लॉजिक बेहिंड इट। हाँ जी, कनेक्टेड फील करने के लिए। और टैक्स में बेनिफिट हो सकते हैं। और सर मोटिवेशन भी आता है उससे, मोटिवेशन भी आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। बिल्कुल ठीक है। आप बताएंगे सर कुछ? सर मैं बताता हूँ सर, एक बजा नहीं था, 12:30 बजे थे। मैंने कहा साहब को बुलाना। पीएन कहता है सर इज हैविंग लंच। चलो अब भाई साहब को बुला दो। 1 बजे सर ही इज हैविंग लंच। मैंने 1:30 बजे बोला मैडम को बुलाना, सर मैम इज हैविंग लंच। मैंने 2:30 बजे उनको बोला सर को बुलाओ, सर इज हैविंग लंच। सर ऐसा नहीं था कि ये लोग पहले खाली बैठे थे, ये भी हो सकता है कि 2 बजे तक वो किसी मीटिंग में थे, वो काम कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है सर। अगर मैं ऐसे ही बुलाऊं कि इट इज नॉट द टाइम फॉर लंच, तो वो क्या होगा सर? जैसे भाई साहब ने बोला मोटिवेशन बिलोंगिंगनेस, तो वहां पर प्रॉब्लम आएगा सर। और फिर हमने सोचा भी ये तो बड़ी समस्या है, अगर सबके टाइमिंग अलग अलग है, मेरा टाइम अलग है, उनका अलग, सबका अलग, तो दिक्कत आएगा। तो सर बड़े बड़े कारपोरेशन ने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट टू फिक्स वन लंच पीरियड, एंड लंच विल बी सर्व ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली, एंड नो नीड टू कैरी लंच, कि मेरा टिफिन गर्म नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, वो एक्सक्यूज भी खत्म हो जाएगा। जैसा मैडम ने बोला, उससे एक गैप और भी खत्म होता है। कल मेरी और भाई साहब का तो मैं हो गया किसी पॉइंट पे, और फिर मेरे को ये मिलेंगे लंच पे, फिर मैं इससे बचूंगा हाउ आर यू, ठीक है, मैटर खत्म हो जाता है। तो बिलोंगिंगनेस है सारा, ऊपर कम्युनिकेशन चलेगा और वो सारा चीज होगा। तो यहाँ पर राइट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन कहते हैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट माय एम्प्लॉय शुड बी अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है ना सर। और देयर आर सम काइंड ऑफ द कॉमन टाइमिंग्स एटसेट्रा, तो उनको आपने सेटल करना है। उनकी एक्सपेक्टेशन है लंच टाइम शुड बी गिवन, तो आपने उनको सबको लंच दे दिया सर, आपने लंच भी दे दिया, और वो सारे के सारे इशू खत्म हो गए सर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड टीम्स, मैक्सिमम गैप is because of the communication, and communication should be both ways. I should be allowed to speak to my director, and my director can speak to any person. नॉर्मली क्या होता है सर, अगर हम फाइल के थ्रू बोले तो नीचे से ऊपर कुछ जाता है, ऊपर से नीचे कुछ आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, राइट काइंड ऑफ ओपन कम्युनिकेशन शुड बी देयर। जैसे आजकल हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में तो ईआरपी की बात है, सब कुछ उसके थ्रू जाता है, आप सभी लोग वहीं से वहीं उसको असेस करते हैं। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। What are expectations from A team, B team, C team, D team? Yes, sir. And what kind of the resources are required? The said kind of the resources are provided to them. Said kind of the facilities are provided to them. और उसके हिसाब से हमने किया। And determine individual training and performance plan. हम सबका सेम प्लान नहीं हो सकता सर। Sir is having experience of 30 years. Gentleman is having experience of 5 years. Someone is having experience of 6 months. ठीक है सर। ये भी मैं कहता कि ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द न्यू पर्सन, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू, बट व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड सर, दैट मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कह रहा है कि सारी की सारी चीजों को आपने डिटरमाइन करना है सर, और उसके बाद ही आप इसको बात करें। तो ये स्लाइड ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज देयर एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर देयर। So I clearly mentioned, unless and until the performance appraisal method is not clear in the organization, we can't reach at the level of the performance management. ठीक है सर। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज किसका होना है सर? एम्प्लॉइज को होना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसको करना है सर? मैनेजमेंट को करना है। और क्यों करना है सर? फॉर अचीविंग द बेटर रिजल्ट्स। नॉर्मली हम बोलते हैं सर व्हाई वी शुड थिंक फॉर द मैनेजमेंट, हम उसमें बोलते हैं टू इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू डिफीट योर कंपटीटर, टू मिनिमाइज द वेस्टेज, इस तरह की बात करते हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे सर? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू रिटेन मैक्सिमम फैकल्टी, टू गेट द बेटर रेटिंग इन द मार्केट, गेटिंग एन नंबर ऑफ द गुड पब्लिकेशंस, सारी की सारी बात करेंगे हम उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कहते हैं इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट थ्रू द यूज ऑफ फीडबैक बिटवीन देम। तो कहता है कि जो फीडबैक है दैट इज अ हेल्दी टूल फॉर अस, लेट इट टेक प्लेस, लेट इट टेक प्लेस। फीडबैक इंप्लॉई का भी होना चाहिए सर, अगर स्टूडेंट का है तो एम्प्लॉय का भी होना चाहिए। तो हम भी लिखेंगे, बच्चे भी लिखेंगे, मैनेजमेंट भी लिखेगी,
तो उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। एड्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है सर? In most of the government institutes, sir, number of the seats are vacant, sir. And senior, but even the position at the senior level are vacant. So if the senior level people are not there, so definitely the organization is suffering. So कहते हैं कि there should be proper planning. As and when, how many number of persons are required, at what time they are going to get the retirement, and then how to replace them, what kind of the caliber should be there, how much persons should be taken from within an organization, how much should be taken from outside. तो सारे का सारा प्रॉपर प्लान में होना चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट में बी यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो जॉब है, जैसे हम सभी लोग अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी जॉब की वर्थ होती है सर। अगर हम बोले ना कि क्लर्क बाबू क्या करता है, एक क्लर्क के बिना सर सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, एक सुपरिटेंडेंट के बिना कुछ भी हो सकता है, एक डायरेक्टर का जितना रोल है सर उतना ही दूसरे बीच के लोगों का भी रोल होता है। तो हर जॉब की वर्थ को स्टडी किया जाना चाहिए। सिर्फ परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली विद रिगार्ड टू फैकल्टी, वी विल नॉट बी इन पोजीशन टू रीच इट। इवन वी हैव टू टेक केयर फॉर द क्लीनिंग पार्ट, we have to take care for the security guard, we have to take care for our reception, we have to take care the kind of the internet facility we are having, the drinking water is available, ठीक है ना, और क्वालिटी ऑफ द वाटर इज देयर। वो सारे पैरामीटर भी आप यहाँ पर देखेंगे। और आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग नीड्स, ये इंपॉर्टेंट है आज की डेट में सर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स। सर हमारा इंजीनियरिंग का बच्चा ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, हमें खुद नहीं पता कहाँ होता है। सर मैंने भी इंजीनियरिंग में कॉलेज में काम किया, तो फिर हमने कहा भी नहीं, हम ना 5-5 टीचर्स को, मतलब स्टूडेंट को एक टीचर के साथ एसोसिएट करेंगे। अब वो टीचर उसके वहां पर जाएगा सर, तो फिर वहां पर आया सर, वहां पर जाने का खर्चा कौन देगा सर? वो ट्रेन से देंगे, तो मैं सेकंड क्लास से क्यों जाऊँ सर? AC3 से मेरे से नहीं कोलकाता जाया जाएगा। तो इस तरह के इश्यूज भी आते होंगे सर। तो ट्रेनिंग नीड है तो फिर उसके लिए आपको उतना ही इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। जो जस्ट डोंट थिंक दैट इट इज मैटर ऑफ सेमेस्टर, और ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन हो गया, टीचर ने ज्वाइन करना है, 21 दिन का ओरिएंटेशन होना है, कहीं से भी करा देंगे, ऑनलाइन करवा देंगे, तो इस तरह से नहीं लेंगे इसको। एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन रिवार्ड्स एंड रेमुनरेशन। इफ मोटिवेशन का बात करें ना सर, रिवार्ड्स नहीं देंगे आप उनको, इकोनॉमिक रिवार्ड्स नहीं देंगे तो नहीं बात बनेगा। एवरी टाइम एप्रिसिएशन लेटर से काम नहीं चलेगा, तो आपको रिवार्ड्स भी देखना पड़ेगा। और लिंक टू एम्प्लॉइज रिलेशन डिसीजन, अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप। दो टर्म होते हैं सर, एक ट्रेनिंग होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग जैसे हम अभी लोग बैठे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और इन केस ऑफ द डेवलपमेंट आप लगे, थोड़े टाइम के बाद हमने इनको सब्जेक्ट का इंचार्ज बना दिया, फिर इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, फिर हमने इनको हेड बना दिया, और एक दिन इनको डीन बना दिया। और इससे क्या होगा सर? इस तरह की एक्टिविटी से बेनिफिट क्या होगा सर? ये बहुत कुछ सीख जाएंगे सर। इनको ऊपर वाले में पहले जो गैप था वो भी सीखने को मिलेगा, और इनको ये भी पता चलेगा कि कोलीग्स के साथ लड़ाई करने से क्या ड्रॉबैक होता है। तो जब वो कोऑर्डिनेटर बनेंगे तो उनसे भी काम लेना पड़ेगा। तो वो सारे का सारा भी हम आपस में सीखने की कोशिश करेंगे। और हर एम्प्लॉय में पोटेंशियल होता है सर। ईच एंड एवरी पर्सन कैरी सम काइंड ऑफ द पोटेंशियल, और हाउ टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट काइंड ऑफ द पोटेंशियल, उसको किसको फाइंड आउट करना है? ओनली एंड ओनली द मैनेजमेंट कैन डू इट। आपके बॉस को ये पता होना चाहिए कि किस पर्सन को कहाँ लगाना होता है। ऐसे हम मोस्ट नोटोरियस बच्चे को मॉनिटर बनाना पसंद करते हैं सर। क्यों करते हैं? कि जो उसके साथ के जो 5-7 बदमाश होंगे ना, कम से कम वो तो उसके चक्कर में वहीं बैठेंगे, ऐसे ही होता है। तो हम इसका पोटेंशियल मालूम था। तो सेम इज हैपनिंग इन केस ऑफ द मैनेजमेंट। वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड यूज इट। ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है सर, आप अपने अपने एंगल से बताएंगे प्लीज। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कैन आवर इंस्टीट्यूट्स विजन एंड वैल्यूज बी रिफ्लेक्टेड इन आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम? इज रियली दिस इज हैपनिंग सर इन आवर सिस्टम? तो हमें से आप सभी गवर्नमेंट सेक्टर से हैं सर, तो हमारा तो सर सिस्टम सा है ही है, तो हम तो ये बोल ही सकते हैं भी यस दिस इज हैपनिंग नाउअडेज। गवर्नमेंट इज कमिंग विद अ न्यू काइंड ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी एंड they are working upon all these things sir nowadays. They are also concentrating upon the research training part. These are taking place. तो सर दुख की बात क्या हुआ कि हमने NEP इम्प्लीमेंट किया स्कूलिंग पे, और घर में बच्चे होंगे छोटे, अभी उनकी बुक्स देखना है सर। बुक के लास्ट में 4 एक्सरसाइज डाल दी सर, और वो बोल दिया कि ये प्रैक्टिकल हो गया सर। तो इफ वी विल बी कैरिंग दैट काइंड ऑफ द प्रैक्टिकल, so that is just IVAS sir, that is totally useless sir. And if we will be running such kind of the practicals in case of this engineering department, again it will be
मेरी बिटिया ना सर मेडिकल कर रही है, तो मैंने इससे पूछा कि तुम लोग ये कैसे सीखते हो वेंटिलेटर ये वो। तो मुझे कहते कि नहीं पापा, हम बॉडी पे नहीं सिखाते हैं, हमारे को शुरू में हमको आर्टिफिशियल प्लास्टिक का बॉडी दिया जाता है और ह्यूमन बॉडी की तरह से काम करता है वो बिल्कुल उसमें, तो उस पर सिखाया जाता है। तो हर तरह का अलग अलग प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम्स आती हैं सर। और शुरू में हम अगर हम बोलें कि एक मेडिकल वाला है तो उसको डॉक्टर शुरू में पेशेंट के लिए लगा दे, वो भी नहीं हो सकता, बट स्लोली एंड स्लोली यू हैव टू टेक इट। जैसे मेडिकल वाले में जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको पास में बैठा लिया जाता है ऐसे, वो आते हैं सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ वो करते ही करते हैं। कभी कभी डॉक्टर का मूड होता है तो उससे पूछते हैं हाँ क्या है इसको, तब उसको पूछते हैं, फिर उसको कहते हैं इसको पढ़ के आना, कल प्रेजेंटेशन देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कहता है कि सर unless and until we don't know that either my organization is working for their particular vision and vision, तो अगर वो नहीं काम कर रहा सर, it is not bad at their end, it is bad at my end. Why? तब वो तो डायरेक्टर हैं, 2 साल में चले जाएंगे, but I have to serve here 20 year, I have to serve here 30 year, and I at the end I have to get my leave encashment, gratuity, provident fund, सारा अमाउंट मुझे लेना है, तो वो सारे का सारा इसमें देखना होगा। और अगर हम इसके कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर, तो फिर वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। But all these things were not depending only upon the theoretical framework, sir. Again, we have to think for the financial part also. और जब हम बोल देते हैं सर लर्निंग इज देयर, ठीक है ना सर, लर्निंग इज नॉट जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज a long process, sir. And for the learning, again, we have to create the environment, clear. And what are the benefit of this? Why I should learn these things? Where it will be useful for me? How it will be an value addition in my CV? जब तक वो सारा क्लियर नहीं होता सर, तो हम उसको कभी नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि राइट पेपर, थिंक फॉर साइटेशन, तो मैं कहता हूँ साहब मैं तो गवर्नमेंट में आ गया, मुझे साइटेशन से क्या बेनिफिट है? परंतु हाँ उसका बेनिफिट होगा साहब कि एक दिन जब आपका पेपर हिट करेगा, तो दूसरे जो टॉप इंस्टीट्यूट है वो आपको बुलाएंगे, सर आर यू विलिंग टू वर्क एट दिस पोजीशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपको क्यों बुलाएगा सर? बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ द विजन एंड मिशन, ठीक है सर। वो आपको उसलिए बुलाता है, उसको आपका पोटेंशियल मालूम है। तो यहाँ पर सर फाइनेंशियल पार्ट भी देखना पड़ेगा, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसिंग भी देखना पड़ेगा, एंड हु आर दी कस्टमर्स। अगर मैं सर एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जिसमें बच्चा ही बहुत मतलब डिग्रेड टाइप का है, और मैं बात चला रहा हूँ सर एक बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ सर, वाई IIT and IIMs are able to fix the high salary because the bank are providing the finance. None of the student is facing financial problems, clear. And hundreds and placement is there, each and every student is able to get the good placement, तो तभी वो पॉसिबल हुआ सर। तो वो कब पॉसिबल हुआ सर? बिकॉज दे ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग टू अचीव दैट पार्ट, they are concentrating more upon this training and placement part, sir. And in many of our organizations, sir, training and placement part is just for the formality that we have appointed one coordinator, और उसने 2-4 कंपनी बुलाया, कभी फोटो खिंचवा दिया और उस तरह से लगा दिया। But if you will visit sir any of the private institutes, sir, for example you visit in nearby this PEC or you BITS Pilani, Thapar, you will find a very long list of the company visited during the year, and they are also talking highest package, lowest package, average package for this thing, and because they are working। और सर ये वर्क जो हुआ ना सर, ये स्ट्रेटजी का पार्ट हुआ सर। Why the private institutes are thinking for this? Because they have to compete with the public sector, और पब्लिक सेक्टर में फाइनेंशियल इश्यू नहीं है सर, परंतु उनके लिए फाइनेंशियल इश्यू भी है सर, उनके लिए फाइनेंशियल इश्यू भी है सर। बहुत सारे मैं इंस्पेक्शन पे गया, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बोलते हैं यूआर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, और गवर्नमेंट वाले में से 5 टीचर होते हैं सर 50 में से, और हम वहां पर भी परमिट कर देते हैं बिकॉज दैट इज ए पब्लिक इंस्टीट्यूट। अभी किसी गवर्नमेंट की इंस्पेक्शन आपने रिजेक्ट हुआ नहीं देखा सर, तो प्राइवेट पे डेली आप ही लोग हम ही लोग नोट लिख के आते हैं सर। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये सारे के देखो, मैं सर एक बोर्ड इंस्पेक्शन पे था इन ए बॉर्डर एरिया नियर बाई पाकिस्तान, 7 किलोमीटर का सर। तो देयर वाज ए बिग इशू, दे से दैट सर वी आर नॉट गेटिंग मोर देन 20 स्टूडेंट इन दिस कोर्स। तो जब हमने उसका फिजिबिलिटी देखा सर, बिल्कुल नहीं था। But if I was going through the norms of the university, I can't permit them to run this kind of the course. But on the other hand, when I was looking to the geographical condition of that part and the other part, and I was from the heart I was willing that such kind of the courses should be given to be run in this area. तो वो सारे के सारे पार्ट भी होंगे। तो विजन और मिशन में सर स्ट्रिक्ट होके काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी बिट फ्लेक्सिबल, बट flexibility should not be at the cost of your objectives, at the cost of your vision and mission। सर ये बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के। दिस टोटली डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, क्लास टू क्लास। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड ऑफ ए प्रोफेसर, ऑफ ए डायरेक्टर,
ठीक है ना, 4th क्लास का भी करना है। तो ये 2 स्लाइड आम जनरल परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए है सर। तो कहता है कि इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम जो हम बात कर रहे हैं सर, दोनों सेम होते हैं? दोनों सेम नहीं है सर। परफॉर्मेंस अप्रेजल किसका किया था सर हमने? एम्प्लॉइज का किया था। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसका किया था? इंस्टीट्यूट का किया था। दोनों अलग अलग। और जो पीएम है दैट इज ए ब्रॉड टर्म, बिकॉज परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किसने किया था सर? अगेन बाय द मैनेजमेंट। दैट वाज नॉट डन बाय मी, दैट वाज नॉट सेल्फ अप्रेजल, दैट वाज अ परफॉर्मेंस अप्रेजल डन कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसमें जो बड़ी टर्म है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट था। और ये कहते हैं सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट पोजीशन इन टॉप 10, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300? तो आप जिनके लोग आ रहे हैं सर इसमें, तो वो क्या इंडिकेट करता है सर? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी है इन साइंसेस सर, so because of the sciences they are able to get a good position in India. Sometimes they are able to get the position in the 200 top universities in the world. तो कभी वो पहले बहुत अच्छा था सर। अगर हम उसकी स्टडी करें सर, why this was happening, that was happening because of the research part sir. And earlier who were conducting the research? Earlier the research was basically conducted by the universities only sir. But nowadays even the institute level the good research work is there sir. तो वो जब जैसे जैसे दूसरा कैलिबर इस तरह से बढ़ गया सर, तो वो ऑब्वियस है कि इनका रिसर्च वर्क भी कम हो जाएगा, उससे रेटिंग पे फर्क आएगा। तो अब सीधी सी है, जिनके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स होगा, अच्छा बच्चा होगा, तो उनकी रेटिंग उतनी अच्छी जाएगी सर। तो इट इज गोइंग टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसका अगर आपको पता लग जाएगा तो बेनिफिट हो जाएगा सर। तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है सर, इज इट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन? जो हमने अभी बात किया कि होना चाहिए, इज इट गोइंग टू कंट्रीब्यूट? यस, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट। देखो मैनेजमेंट में क्या था, दैट वी हैव टू गेट द थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। तो दूसरे से काम कराना बहुत मुश्किल होता है सर। और दूसरे से काम कराने का मतलब कि आपको दूसरे की एक्सपेक्टेशन भी पता होना चाहिए, दूसरे को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, दूसरे को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उसको सुनना भी पड़ेगा सर, उसको सुनाना भी पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। तो कहता कि हाँ ये होना चाहिए, बिकॉज इट इज ए मोटिवेशन टू परफॉर्म। It is going to motivate the workers so that they can perform better and increase self-esteem. Increase self-esteem. Why I say, okay, sir, now you will be the coordinator of this subject. Now you will be the head of department of this subject. Now you will be the dean of this subject. Means I am going to tell, if you will be working, you will be in position to reach at the level of this part position. तो हमारा सबका कुछ ना कुछ अचीव करने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है सर, जहां जाके मैं पूरा संतुष्ट हूँ। सेल्फ एस्टीम में इसके बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, ठीक है? आई शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई शुड बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई शुड बी अ प्रोफेसर, ठीक है ना सर, आई शुड बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो सारे के सारे यहाँ पर करेगा। एंड मैनेजर्स गेन्स इनसाइट अबाउट सबऑर्डिनेट्स। हमको अपने सबऑर्डिनेट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हमारे गैप हो सकते हैं सर। द मोमेंट यू आर सिटिंग ऑन द हायर पोजीशंस, you know each and every person. The person who is sitting this side of the table or that side of the table, जैसे ये पर्सन उसके ऑफिस में आता है ना सर, उसको ये मालूम होता है कि ये किस काम के लिए आया है, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको कौन से वाला कैप्सूल देना है, इसका काम करना है सर। इधर वाले को पहले से पता लग जाता है सर, बॉडी लैंग्वेज से, बिहेवियर से, क्योंकि उसको पता है, इतना एक्सपीरियंस होते होते वो सीख जाएगा। और जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं सर, व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलर इज गोइंग फ्रॉम माय साइड एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन मे कम फ्रॉम दैट साइड, ही नोज बेटर बेस्ड अपॉन हिज एक्सपीरियंस। जॉब्स आर सिंप्लीफाइड। जॉब को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है सर हमने, बिकॉज हमने बात क्या थी, द मैनेजर्स आर देयर, द सबऑर्डिनेट्स आर देयर, बोथ शुड नो द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच अदर। तो वो हो जाएगा सर। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर क्लियर, नाउ ईच एंड एवरी पर्सन नोज व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, व्हाट आर द विजन, व्हाट काइंड ऑफ मिशन दे हैव, दे ऑल आर वर्किंग फॉर दैट। एम्प्लॉइज बिकम मोर कॉम्पिटेंट, ये भी देखा गया। ये सारे के सारे पॉइंट जनरल हमने डिस्कस किया सर। तो नर्सल में यही बोलता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इज गुड फॉर आवर ग्रोथ। इफ ऑर्गेनाइजेशन विल स्टैंड इन द मार्केट, वी विल स्टैंड इन द मार्केट। देखो सर, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक पोजीशन में काम कर रही है किसी स्टेट में, और दे आर आस्किंग फॉर मोर फंड्स, गवर्नमेंट उसको दे देगी सर। एक यूनिवर्सिटी है जो डेली कंप्लेंट है, काम नहीं हो रहा, डेली स्ट्राइक चलती है, पंगे पे पंगा चला रहता है। इफ दे आर आस्किंग फॉर मोर ग्रांट्स, विल द स्टेट गवर्नमेंट अलो मोर ग्रांट्स सर? दे विल नॉट अलो, ऑल्दो बोथ आर द पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना।
तो वो कब होगा सर? एक टीम बिल्डिंग से काम होगा। और ये जो मैनेजमेंट है सर, एवरी टाइम इट कैन नॉट बी बाई फोर्स, it will be only and only by way of team building, by way of proper coordination, by way of understanding of each and everyone. जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे सर, तब जी सर। I have a question here. Sir, please. You very well described the PMS and the PM, the appraisal system also very well also earlier now also. But now I have a question like when you talk about any government organization, so in your knowledge, any of the state governments, because this is all governed by mostly the government employees, have they any structured PMS management system, performance management? No. As of now. Any public sector which can be replicated model, do we, in your knowledge, do they have? Yes, sir, now the things are changing, sir. As of now, do they have? Hey, now the things are changing, sir. If you see the last 2-3 years, sir, what is happening? For example, I'm going to quote the example of this institute also only. We have the state of Punjab, we have the state of Haryana, sir. Now the state of Punjab and state of Haryana has taken the consultancy from the NEET, sir, for the development of the curriculum for their these polytechnic programs, sir. And they're also asking how to execute these things in our organization. But earlier these things were totally missing, sir. And as your question is there, sir, if you see from the last 4-5 years, sir, the new body is there, RUSA. UGC अलग RUSA आया, sir. So what the RUSA is telling, sir, what kind of the things need to be purchased? पहले आप प्राइवेट से परचेज करते थे, आप एक सॉफ्टवेयर बेस से परचेज करेंगे सर, अब आप इससे परचेज करेंगे सर. So and so things need to be executed. Academic calendar part is there. One hand जहाँ पर gap है सर, one hand we are talking about the liberty, on the another hand we are going to make it bit tough. तो थोड़ा सा चेंज तो हो गया सर. Yeah, I'm part of the Haryana process itself. तो मुझे मालूम है कि वो, I mean we are talking very different kind of model because आपके वाला ideally seems very very interesting. और एक corporate employee करता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता ये performance management system, PS management system. When you name any big corporate, they're already implying it. My question was that कि क्या because government system में जो demographically dividend और बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो corporate से अलग है. Even number of factors are there. तो क्या कोई किसी पब्लिक सेक्टर में क्या कोई स्ट्रक्चर्ड मॉडल है ऐसा या मैं बताता हूँ क्या हुआ. If you will go in the university system, sir, there is a position of the vice chancellor, there is a position of the registrar, sir. These two positions are very important and mandatory also, sir. But if you will look in some of the universities, they have the dean college development councils, they have the dean academics, they have the dean university instructors. But dean university instruction is not in every university, sir. In maximum state university, this position is missing. But in case of the central universities, in case of central, like this is not the central university, Punjab University, they are running this kind of the things. But अगर आप इसको ध्यान से देखें, sir, if I am honestly working for the position of the dean college development council, sir, the number of the things I am able to execute, sir. ठीक है सर. तो मैंने पहले एक वर्ड बोला था सर, these totally depends upon the academic leadership. But वो levels रह जाते हैं. Ultimately you have to because follow whatever being dean academics I can do whatever my vice chancellor is going to tell me. तो हमने पहले ही बोला कि total things depends upon the top and lower version और उनका आपस में coordination कितना अच्छा होगा. पर ये गैप है सर और इसके पीछे बहुत सारे कारण है, आप मेरे से बेटर जानते होंगे. तो सर ये जो हमने इसके डिसएडवांटेज की बात की, तो ये ऐसा नहीं कि सर ये इट इज ओनली एंड ओनली गुड. देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम आल्सो. इट इज नॉट इजी टू एग्जीक्यूट. और जब हम इसको एग्जीक्यूट की बात करते हैं सर, एंड अगेन यू सेज दैट यू आर वर्किंग, यू आर टेकिंग अस एज ए कॉर्पोरेट वर्क एंड वी आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. So if you are working here, we are working here at less salary. Faculty of the Thapar is able to get, as assistant professor is able to get the salary of 2 lakh, but here only 80,000 is there. तो वो सारी चीजें भी आती हैं. अगेन जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन आया सर, ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड एज फार एज वर्कर पार्ट इज कंसर्न. तो लोग कहते हैं कि सर इट इज गुड फॉर अस. कैसे हुआ साहब गुड? कि सैलरी पैकेज अच्छे हो गए, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें आ गई. सर मैंने एक क्वेश्चन बोला था आपसे कि अगर मैंने आपको मोबाइल लैपटॉप फ्री दिया, तो सर ये उन्होंने आपको इसलिए दिया कि आप इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते. अगर मेरा मोबाइल है आई कैन स्विच ऑफ इट, बट दिस इफ काइंड ऑफ द सिस्टम इज गिवन टू यू, मोबाइल लैपटॉप इज गिवन टू यू, आप ये नहीं कह सकते सर माय लैपटॉप वाज नॉट, आई वाज नॉट कैरिंग माय लैपटॉप. यू आर सपोज्ड टू कैरी इट, यू आर सपोज्ड टू कैरी इट. तो सर वहां पर एक प्रोफेशनल, हम इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म एक अलग तरह का सेल्फिश वाला प्रोफेशनलिज्म होगा. तो वो चीजें इसमें देखने को मिली. ये भी कहता है कि इट इज गोइंग टू डैमेज योर रिलेशंस. वाई रिलेशंस? हम कहते हैं नो, दीज आर योर पर्सनल, नो एक्सक्यूज. इफ द थिंग्स आर असाइन्ड टू यू, यू आर सपोज्ड टू डू इट. तो सपोज्ड टू डू इट एवरी टाइम नॉट पॉसिबल.
तो सर ये सिस्टम कोई कंट्रीब्यूट करता है, इज इट गोइंग टू कंट्रीब्यूट ओनली फॉर द मैनेजमेंट और आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द एम्प्लॉइज? इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर बोथ सर। हमने जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया? इट वाज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमने कोशिश क्या किया सर, बेसिकली हमने कोशिश किया टू एस्टेब्लिश ए हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल, टॉप एंड द लोअर। अब आपका अपने कुलीग के साथ लड़ाई हो जाए, अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट के साथ डिस्प्यूट हो जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होने वाला। आपके फोर्थ क्लास के साथ लड़ाई हो जाए तो बहुत बड़ा इशू होगा सर। पब्लिक प्लेस पे कहीं बाहर मिला, आपका गेस्ट आया तो आपको विश ही नहीं किया, आपका बैग ही नहीं लेके आया, गेस्ट को ठीक से वो नहीं किया, तो आप अपने आप को ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। और किसी भी पर्सन को आप थ्रो नहीं कर सकते सर, किसी भी पर्सन को थ्रो करना इन पब्लिक सेक्टर इज नॉट सो इजी। तो यहाँ पर उसको करना क्या है सर, वी कैन गो फॉर द काउंसलिंग, वी कैन गो फॉर द ट्रेनिंग, वी कैन गो फॉर मोटिवेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वी कैन मेक हिम ए पार्ट ऑफ द टीम। इफ वी आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन सर, एंड इफ आई एम गोइंग टू टेक support from top to bottom, means I have taken a team of 10 persons, but in the 10 persons I have taken the person from top, middle and lower level sir, then it is always easy to execute. Hota kya sir, there was a gap and the team is asking why so and so things is happening, so sir is able to convince that these points were raised by me at that time, but they have this kind of the work, but they agreed it will be taken care shortly. So it is good for both organization as well as top and middle levels. Again we are talking about the scope of the performance management system. देखिए साहब स्कोप तो सारी चीजों में रहेगा. If I am going to talk only and only with the relationship of the top and middle, it is not going to take. I have to take care for the financial issues, I have to take care for the physical resources, I have to take care for the kind of the culture. Culture क्या है सर, कल्चर सिर्फ कल्चर कहने से नहीं बनेगा, कल्चर तो हम लोगों ने बनाया. How to avail the leave, why you have not applied for the leave, तो कैजुअल लीव है सर, कैजुअलिटी तो बता के नहीं आया था सर, ठीक है ना सर. तो अब तो चलो ईआरपी हो गया, सिस्टम बन गया, परंतु अगेन सच काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. तो इसमें सारे चीजें जितनी हमारी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल पार्ट है, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पार्ट. यस, की रिजल्ट एरिया क्या है, इसमें कौन कौन से की रिजल्ट एरिया हुआ है सर. तो फॉर व्हाट वी हैव स्पोकन फॉर अराउंड एन आवर सर, we have spoken for the achievement of the vision and mission of the organization. So basic fundament is there. We have employed a number of the employees, we have a team, or what, not only just for teaching sir, these are for the achievement of that particular objective. For example sir, in case of public sector, what is the objective of this opening of the new medical institutes, new engineering institutes? To provide good quality of the engineers, right kind of the person, ठीक है ना सर, to increase the employability. वो सारे पॉइंट होंगे. तो कहता है कि सारे के सारे इसमें वो हो, पर तो विजन देखो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्ट था सर, आपके जो इंस्टीट्यूट है उसका क्या ऑब्जेक्ट था, और आपने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया. और वो ऐसा नहीं हुआ सर कि वी ऑल कैन फ्रॉम द डे फर्स्ट कैन डू इट, बिकॉज द विजन एंड मिशन इज नॉट फॉर टुडे. दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी हैव टू रीच इन द नियर फ्यूचर, वी हैव टू रीच इन द नियर फ्यूचर. और नियर फ्यूचर में जाने के लिए वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द डे फर्स्ट, वी विल बिल्ड इट इन द राइट मैनर, तो ये अच्छा बन जाएगा. सो जो कल्चर क्या होता है सर, culture will totally depend upon the leadership. If the leader is good, he is able to understand his workers, things will be going in the right direction. अब हमारे एक डायरेक्टर थे और एक एम्प्लॉय थे. एम्प्लॉय ने कहीं से लेटर हेड उठाया सर, एक गलत सैलरी का स्लिप बनाया और बैंक से लोन ले लिया, और जो सैलरी का स्लिप था उसमें लोन उसने ज्यादा लिया सर. तो बैंक वालों को उस पर शक हुआ या किसी ने कंप्लेंट किया, तो बैंक वाले सर उसको ऑफिस में डिस्कस करने आ गए, जनाब ये आपका लेटर है और ये. तो उन्होंने देखा कि हाँ एम्प्लॉय भी हमारा है, सैलरी गलत शो की हुई है. तो उन्हें क्या हुआ, सर ही हैज अप्लाइड फॉर द लोन इन आवर बैंक, सो वी वर हैविंग डाउट दैट सच काइंड ऑफ द पर्सन एट सच लेवल कैन गेट दिस काइंड ऑफ द हैंडसम सैलरी. कहते नहीं हमारे यहाँ सैलरी मिलता है, ठीक है आप जाइए. वो चला गया सर, साहब ने प्रिंसिपल साहब ने उसको बुलाया, चाय पिलाया, उसकी फोटो कॉपी ले लिया सर. उन्होंने कहा ये बैंक में आपने दिया है. तो जैसे उसको देखा तो उसको पसीने आ गए सर. वो कहता है बेवकूफ, अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देता, आई कैन इश्यू दिस. और अगर मैं आज इसको डिनाई कर देता तो तुम्हारा करियर जीरो हो गया था. तो बेटर कि उस लोन के लिए अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, है ना. तो अब वो एम्प्लॉय क्या फील करता है सर, एम्प्लॉय फील करता है कि मेरी तो जिंदगी बच गई,
पहले उसने किसको बेवकूफ बनाया था सर? मैनेजमेंट। एक छोटा सा केस आपसे और डिस्कस करता हूँ। हीरो साइकिल का नाम सुना होगा सर आपने। सर हीरो साइकिल्स का एक बड़ा लाइव रेप्यूटेड स्टडी है इस मैनेजमेंट से रिलेटेड। सर रिलेटेड ये था सर कि एक एम्प्लॉय थे सर, उनकी मिसेस की तबीयत खराब हो गई और वो उनको लेके पीजीआई आ गए। तो तब इतना मोबाइल फैसिलिटी नहीं था, तो उन्होंने अपने किसी कुलीग को बोला कि प्लीज इन्फॉर्म इन द ऑफिस दैट माय वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, तो प्लीज अप्लाई फॉर माय लीव। अब वहां पर पर्सनल फ्रिक्शन था, अपनी ग्रोथ का चांस था। उसने बताया या नहीं बताया सर, वो 30-35 दिन उसकी इन्फॉर्मेशन वहां नहीं थी। और दिस काइंड ऑफ द रूमर वाज देयर दैट ही मे हैव जॉइंड सम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ही वाज द की रिसोर्स, so he may have joined somewhere। सर वो 35-40 दिन की छुट्टी के बाद जैसे वहां जाता है तो सिक्योरिटी वाला उसको एंटर नहीं करने देता। तो वो बड़ा चिल्लाता है, यार मैंने तो छुट्टी पे था, मेरी तो मिसेज बीमार थी, ये था वो था। तो उसको नहीं सुनते, परंतु वो पुराना था, तो उसने किसी को रिक्वेस्ट किया कि जस्ट गिव मी टाइम फॉर 2 मिनट्स टू स्पीक टू दी ऑनर। मुंजाल साहब बैठते थे, तो उन्होंने कहा ना, ही विल नॉट स्पीक। अब वो मुंजाल साहब से जाने से पहले ही एक मैनेजर ने जाके उनको काने भर दिया कि जनाब ये कहीं और ज्वाइन किया, 1 महीना इसको वहां अच्छा नहीं लगा, वापिस आ गया, इसकी कोई छुट्टी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वो वापिस आता है सर, तो फिर वो जाके सुनता है, मुंजाल साहब भी उसको इसी तरह से डील करते हैं, नहीं नहीं यू मे हैव जॉइंड समवेयर, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ इन्फॉर्म नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ये किया, इस तरह की बात हुई। वो कहता नहीं साहब, बाई चांस उसके पास कुछ पर्ची थी जो दवाई लेके जानी, सर ये देखो ये मेरी मिसेज तो इतने दिन से बीमार थी, मैंने को आज भी मेडिसिन लेके जाना। तो वो सर गुस्सा होकर उसको बोलते हैं कि मैंने तेरे से घटिया इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। कहते मेरी बेटी बीमार थी, उसकी लाइफ खतरे में थी, और तू बिना बताए इतने दिन से बाहर था, तो तेरे से घटिया आदमी कौन हो सकता है? तो बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, व्हाई यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड मी, आई वाज द राइट काइंड ऑफ द पर्सन। तो उस दिन से लेके सर उस कंपनी का आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक किसी की कहीं बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती वहां का एम्प्लॉय नहीं छोड़ता सर, जॉब नहीं छोड़ता। रीजन बीइंग क्या है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गया सर। एक पॉइंट आया था बीच में हमारे पास, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ गया कि यहाँ का जो मालिक है हमें अपनी फैमिली मानता है। तो जो ये मॉडल की बात करें सर, फिलोसफी की बात करें, तो फिलोसफी का मॉडल तो ये कहता है कि यस यू आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू आर द पार्ट ऑफ आवर टीम एंड वी हैव टू वर्क एज अ टीम। तो जब भी हम बात करते हैं सर, sure that he has not read any PMS system. He doesn't know anything about PMS system. Still, he is managing his company very well. Say, suppose Hero Group is an example you give. Yes, sir. Again, on some parameters, he may be good, sir. He may be taking care on these grounds because his employees are not getting very handsome salary. So, for the labor class, he may be a bit stable because the good kind of the competition is there, sir. तो यहाँ पर सर जो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स थे उनको भी आपने कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। एवरी टाइम, एवरी ईयर, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस ईयर? दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन प्रॉपर मैनर्स एज इन केस ऑफ विजन एंड मिशन। तो उसके हिसाब से आप इसको लेंगे और करेंगे तो आप इसको अचीव करेंगे। और सर ये जो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस साइकिल होता है सर, ये ऐसा नहीं कि हमेशा ही एकदम से चलेगा और एकदम से टॉप पे जाएगा और एकदम से डाउन पे आ जाएगा। हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ से चलेगा, बिगनिंग से चलेगा, ग्रोथ पे जाएगा, टॉप पे जाएगा, डाउन आएगा और फिर से बहुत अच्छा भी जाते हैं। तो इसमें कहता है कि सर ये सारा के सारा टोटली डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज आर देयर, what kind of environment is there, what kind of the support system is there, what kind of action system is there, ठीक है ना सर, और what kind of resources we are getting, sir in today even right now there is a shortage of right kind of the human resources। सर अगर आज आपको ना एक अपना घर के लिए स्वीपर की जरूरत पड़ जाए ना तो वो नहीं मिलता सर आपको, and if you are looking for a clerk, right kind of the clerk as per your expectations, it is not easy to get। आप कोशिश करके देखेंगे मिल जाएंगे आपको, बहुत बड़े बड़े लोग मिलेंगे परंतु सही नहीं मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस में कहता है कि साइकिल है सर, और साइकिल में सारे के सारे कंपोनेंट पे आप एक ही टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। हाँ, कभी किस पार्ट को कभी किस पार्ट थोड़ा थोड़ा करके आपने उसको एक दिन उसको शेप देके ले आना है। और सर जब हमने सारी की सारी बात की विजन मिशन वगैरह की उसमें बात की, तो ये सारे का सारा पार्ट था बेसिकली रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी, रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी। तो वी हैव अ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वैसे तो हम स्पोर्ट्स के और वार के केस में यूज करते हैं, दैट हाउ टू डिफीट द कंपटीटर, हाउ टू डिफीट द कंपटीटर। बट हियर वी कैन से देयर स्ट्रेटजी इज अ स्पेसिफिक प्लान टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस। So given circumstances means all the factors are clear to me. What kind of resources I am having, what kind of problems I am having, and what kind of environment, what kind of expectation from the government, what kind of expectation from the society, वो सारी की सारी होंगी।
तो उसमें आपने सबको सब क्लियर करना है। तो यहाँ पर सीधा कहता है कि सर फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ द विजन एंड मिशन, यू शुड फॉलो द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आप इसमें फॉलो करेंगे सर, तो जो भी डिसीजन आपने ले रहा है, इधर फॉर एनी काइंड ऑफ द रिवार्ड्स, एनी काइंड ऑफ द मोटिवेशन, एनी काइंड ऑफ द ट्रांसफर पॉलिसी, जो भी लेना है वो आपके विजन और मिशन का पार्ट होना चाहिए। और ये जब भी आप कोई इस तरह का कोई चीज बनाएंगे, तो अगेन इट इज बीइंग सजेस्टेड दैट डोंट इग्नोर द एनवायरमेंटल फैक्टर, don't think only and only for today, what is best for today, even you have to see for the tomorrow, you have to see what kind of the changes may take place in the near future, clear? So the clear cut road map should be there. सर हमने पहले बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए टॉप के, तो पिछले 4-5 साल से हम एम्स बना रहे हैं सर, मेडिकल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कभी इसका भी एक ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट ने बनाया होगा, ये एक लंबा साइकिल बना होगा सर, और स्ट्रेटजी है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में वो हो जाएगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसमें कहते हैं 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है सर, एनवायरमेंटल इशू, गो फॉर द स्कैनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन माय कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल, व्हाट काइंड ऑफ द चैलेंजेस आर देयर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर साइड, और फिर उसके विजन मिशन तो सारे आपके साथ साथ होंगे। एंड जब भी आप ये कुछ काम करते हैं सर, कोई भी प्लान बनाएंगे, तो प्लान बनाना ही सफिशिएंट नहीं होगा, यू हैव टू थिंक फॉर द राइट काइंड ऑफ द इवोल्यूशन, जो हमने बनाया और जो हमने अचीव किया, इधर दैट इज राइट और रॉन्ग, एंड कॉन्टिन्यूसली रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको रिव्यू करना होगा सर। ये वही था जो हमने किया था सर। ये वाला स्लाइड सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सर जो जापानीज है ना, जापानीज आर नोन फॉर द वेरी गुड मैनेजमेंट, और बिकॉज दे टोटली डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स, दे टोटली बिलीव्स इन द स्किल्स ओनली। तो जब उनके वहां हुआ, तो वहां पर एक एस फ्रेमवर्क मॉडल आया सर। तो इसने बोला कि देयर आर द शेयर्ड गोल्स, स्ट्रेटजी, स्किल्ड। स्किल में हमने सर यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, स्टाफ, स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड स्टाइल। और जब हम स्टाइल की बात करते हैं सर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर। तो अगर आप ये सारे के सारे एस के ऊपर बात करें सर, शेयर्ड गोल्स, सबसे ऊपर क्या था सर, विजन मिशन की बात की थी सर आपने, फिर गोल्स की बात की सर आपने, फिर ऑब्जेक्ट की बात की सर आपने। तो यहाँ पर कहते हैं द काइंड ऑफ द गोल्स यू आर कैरिंग, दैट नीड्स टू बी शेयर्ड विद ईच एंड एवरीवन, दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब किसी को पता नहीं हमारा गोल क्या है, करना क्या है उसमें, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपका अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा सर। सर इज इन द परचेज डिपार्टमेंट, सर इज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड वी हैव टू इंक्रीज द सेल बाय 20%, वी हैव टू इंक्रीज द सेल बाय 20%। तो परचेज डिपार्टमेंट को मोर सेल करना पड़ेगा, सेल को मोर सेल करना पड़ेगा, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी, एचआर की ज्यादा रिक्वायरमेंट आएंगी। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना वो होगा, और वो कब होगा सर, इफ आई हैव शेयर्ड द गोल। द स्ट्रेटजी इज देयर, हाउ टू अचीव दिस 20%। लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं with the increase in the price, demand comes down. So I can increase either by way of increasing the sale 20% or by decreasing the price, then again increasing the sales. तो कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाऊंगा, buy one get one free, जो भी मेरे पास यहाँ पर चलेगा। अगेन स्किल पार्ट इज देयर सर। स्किल में कहता है कि इफ यू आर गिविंग द स्कोप फॉर द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू योर एम्प्लॉइज, तो दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर देयर स्किल्स इन द बेटर वे। सर जितने इंजीनियर बने, जितने आप देखते हैं, जैसे एक सर अब ये मार्केट में निकलेंगे, गन्ना निकालने का मशीन है सर, और उसको कैरी करने का एक वो बनाया हुआ है सर, सर उसका कोई नंबर है, एक स्कूटर मोटरसाइकिल से उसने बना दिया सर। हाँ, हम इसको बोल देते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ सर। तो एक्चुअली केस में तो वो भी एक इनोवेशन है सर, ठीक है ना सर, वो भी एक स्किल है, ठीक है ना। परंतु वो जिसने बनाया, हमने तो उसको बिल्कुल इग्नोर किया सर। और ऐसे बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में भी है सर। फिर जो काम करता है सर, अल्टीमेट हु इज वर्किंग, स्टाफ इज वर्किंग फॉर दिस थिंग सर। और जो स्टाफ है सर, they are the burden, they are an asset for us or they are the liability for us। क्या होता है सर स्टाफ, they are the assets or they are the liability for us sir। तो हमने तो आज तक उसको बैलेंस शीट में नहीं शो किया सर, but new accounting standard says the HRs need to be shown in the balance sheet because they are an asset for us। तो हमको सिखाया गया सर कि every assets have the two parts, में balance sheet two assets and the liability both are equal। तो वो आप सोचेंगे सर वो बोथ इक्वल कैसे होंगे। मैं रिटायर होऊंगा सर, मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा मेरे से बाद में रिटायर होंगे, इनको 3 करोड़ रुपया मिल सकता है, इनकी लीव एनकैशमेंट,
इनका ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड का फंड मेरे से ज्यादा होगा सर, तो इसका मतलब वो जो पैसा है प्रोविडेंट फंड तो हम अभी भी शो करते हैं, तो लीव एंड कैशमेंट और जो ग्रेचुइटी वाला पार्ट है वो नहीं शो करते, तो जब वो लाइबिलिटी में शो करेंगे तो अपने आप ही बराबर होगा, बट इट कैन बी शोन, बट स्टाफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट एंड दे आर एन एसेट फॉर अस एंड नीड्स टू बी टेकन केयर एंड नॉट ओनली टू द टॉप मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट क्या करती है सर, टॉप मैनेजमेंट वालों को हम वी आर प्रोवाइडिंग देम फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर काइंड ऑफ द फंडिंग बेनिफिट्स, बट दीस आर नॉट गिवन टू द रेस्ट ऑफ द अदर्स, सो शुड बी गिवन। स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वी आर हैविंग सर, अभी हमने बात किया इन सम यूनिवर्सिटी वी हैव द डिफरेंट पोजीशन, इन सम दे हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर, बट यस इफ वी हैव द राइट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स it means we have the right kind of the roles, duties and responsibilities, and if I am in a position to make a proper balance between these two, so things more than half will be done. Then there is a system, there is a system जिसको हमने बोलते हैं processes. Every organization has a different kind of the systems, different kind of the processes will be there, but the process should be suitable to your organization, that should be suitable to our organization, and then the style is there, what kind of styles we are following. हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप चलता है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक चलता है, और एवरी टाइम डेमोक्रेटिक इज नॉट गुड, एवरी टाइम द डिक्टेटरशिप इज नॉट गुड, बट व्हाट काइंड ऑफ द कल्चर सिस्टम्स नीड्स टू बी अडॉप्टेड, दैट मैटर्स। सर इसमें एक वर्ड अभी मेंशन नहीं है मैंने, बट ये था क्या सर, ये कहता है इट वाज अ मैनेजमेंट मॉडल दैट डिस्प्लेस 7 as फैक्टर्स टू ऑर्गेनाइज द कंपनीज इन एन होलिस्टिक एंड इफेक्टिव वेज। सर is it only applicable only in case of company? No, it is also applicable in case of any of the organization. Any of the organization, हर organization का काम क्या सर, they have certain objectives, they have certain duties, they have certain responsibilities, and we have to achieve all these things. परंतु सर जब हम यहाँ बात आए ना, तो कहते हैं why shared values in the middle of the model. shared value हमने वर्ड वहां नहीं डाला सर, परंतु अगर हम उसमें जाके बात करते हैं सर, ये जो लाइनिंग बात की है सर, अलग अलग उसमें आके हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज बना होगा सर, स्किल्स थी, स्टाइल के साथ रिलेटेड है, सिस्टम के साथ रिलेटेड है, स्टाफ के साथ रिलेटेड है, स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, तो इस तरह से करते करते सर एक हमारे पास यहाँ पर शेयर्ड वैल्यूज बनता है, और कहता है कि दैट काइंड ऑफ द शेयर्ड वैल्यू इज एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव द गुड शेयर्ड वैल्यूज एंड यू आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस, यू आर गोइंग टू ऑनर दिस, you are going to promote this, you will be able to reach near to your vision and mission sir. और अगर आप शेयर, अब मान लो सब सामने एक सजेशन दिया, सजेशन इज गुड, आई एम गोइंग टू निग्लेक्ट इट, तो उनका तो कसूर नहीं है ना सर। अब शेयर वैल्यूज में अलग अलग वर्जन आएंगे सर, एंड ऑल दी ऑप्शन सजेशंस में भी इक्वली गुड सर, बट एट ए टाइम वी कैन ऑप्ट ओनली वन, तो विच वन शुड बी ऑप्टेड सर, द बेस्ट वन, विच वन इज द नीड फॉर द आवर सर। सर अगर हम किसी भी प्लान की बात करें, एवरी प्लान इज इक्वली गुड एज पर टुडेज एनवायरमेंट सर, बट टुमारो द सेम प्लान में भी यूजलेस, तो आपको उसको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड नॉट व्हाट इज हैपनिंग, the employees, the staff is not going to accept the change, so even to accept the change is not so easy. अगर हमको बोले जो बैंक्स में सर VRS स्कीम दिया था ना, that was not gift to the employees sir, that was the punishment to the employees, कि वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे जो पुराने लोग थे वो काम नहीं कर पाए, तो फिर हमने उनको बोला कि साहब बेटर कि आप VRS ले लो, आपको 100 बेनिफिट दे देते हैं। तो हमको लगता है कि that was the privilege given to the employees, but actually that was not the privilege, that was the kind of punishment कि आपसे काम नहीं हो रहा तो आप इसको जाइए। और सर इधर इट इज द केस ऑफ द एम्प्लॉइज, इट इज द केस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पर्सन एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड गो फॉर द SWOT एनालिसिस। आपने पढ़ा होगा सर, ये मैं इस पे ज्यादा नहीं करूंगा, दैट वी ऑल नो द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इंडिविजुअली वी नोज इट, एंड इफ समवन नोज हिज और हर वीकनेस, so they are the strongest person in the world. If any of the organizations know their weakness, they have the good scope for the promotion. होता क्या कि सर वीकनेस होती है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप लोग उनको बताते हैं कि सर वी आर फेसिंग सो एंड सो प्रॉब्लम्स, इफ वी विल बी कंपनसेट, वी आर इन पोजीशन टू कंपनसेट दिस, वी विल बी एबल टू गेट बेटर रिजल्ट्स, परंतु उसको नहीं करते, बट अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले तो बेटर रहेगा। और अपॉर्चुनिटीज आर देयर, जो चैलेंज आता है सर वो साथ में कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। कोविड आया तो बहुत खतरनाक पोजीशन था, परंतु उसने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी। और जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सर, हमने भी कभी ऑनलाइन क्लास नहीं लिया था, तो हमने भी उसी टर्म में सारे का सारा सीखा था। और जो थ्रेट्स होती हैं सर, समटाइम्स सम ऑफ द थ्रेट्स सीम्स टू बी थ्रेट टू अस, बट एक्चुअली दे आर नॉट द थ्रेट फॉर अस, ठीक है ना सर। लगता है कि ऐसा होगा, तो उसको प्रॉपर एनालाइज कर लेना चाहिए, दैट पर्टिकुलर थ्रेट मे बी द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट पर्टिकुलर थ्रेट मे बी द अपॉर्चुनिटी फॉर यू सर।
ये हम बात कर रहे थे, कुछ मैंने पीछे से डाटा उठाया। ओवर 550 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एफिलेटेड विद एआईसीटी शट स्टॉप इन द लास्ट 6 ईयर्स सर। और ये पुरानी खबर है सर, 2022 की है सर। और 51 गवर्नमेंट स्कूल्स शट डाउन इन 2018-19, ये रिपोर्ट्स बताती हैं सर। और अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था, अपडेटेड नहीं था सर यस्टरडे। सो व्हाई दिस हैपेंड सर? डू यू फील दैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पॉलिसी? दिस मे बी बिकॉज ऑफ दैट पॉलिसी। और जो मैंने शुरू में बात की ना सर, ये 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, ये कौन से बचे सर जिनमें 5 बच्चे बचे, 7 बच्चे बचे, 10 बच्चे बचे? अब उनके लिए 1 टीचर रखे, 5 टीचर रखे, और फिर बाद में जब हमने उनको देखा कि वो भी नहीं चल रहा तो वो स्कूल बंद करने पड़े सर। तो जब हमने इनको चलाया था सर, तो गवर्नमेंट का विजन क्या था सर कि वी हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू ईच एंड एवरीवन। अगर मैंने सर ये स्कूल बंद किए तो ये सारे के सारे स्कूल ऐसे नहीं थे जहाँ पर 0 बच्चा हो गया था सर। वो सारे स्कूल वो थे जो मेरे उसमें नहीं थे। और तो जब मैंने दूसरा विजन की बात की सर कि स्कूल लगना चाहिए सर, 5 के ऊपर लगा दिया, उसी स्कूल वाले को उसमें जाना है। महीने में पता चला कि स्कूल में टीचर तो 10 ही दिन आ पा रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होगा, हार्ड डिसीजन था, बट दे हैव टेकन इट सर। लास्ट पार्ट इज हियर, कह रहा कि सर ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये सच्चाई है सर कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज मिसिंग टिल नाउ। तो इसमें होना क्या चाहिए सर? चीजें वही हैं, ऐसा नहीं कि अर्लियर वी वर ऑन द रॉन्ग पाथ, नहीं, वी वर ऑन द राइट पाथ। बट नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू मॉडिफाई सर्टेन थिंग्स, we have to change our system, we have to go for the continuous review, continuous performance appraisal, we have to go with the new kind of the motivations, we have to find out the new area of research, we have to collaborate with the other organizations जिसको हम पहले प्रमोट नहीं करते थे। ठीक है सर, तो अब हम कहते हैं कि अगर कोई आपका कंपटीटर है तो कंपटीटर के साथ भी अपने हाथ लगाइए ताकि आप आपस में बेटर कर सके। So this was from my side sir, and if you have any questions you are most welcome to raise please.